Good afternoon, Good everyone. Good afternoon, our Afternoon, sir. afternoon. Good afternoon. Ravi Gurung, artist from Himachal Pradesh. Good afternoon, all the viewers for watching this event live in our Facebook site of Kalimpong Science Center. Mm, Once again, I welcome all of you in this digital platform. This is Dr. B.B. Gurung, curator Kalimpong Science Center. The topic of the workshop is definition of art, pencil drawing, use of different medium like sketch color, pencil color, etc. Before starting this workshop by our today's resource person, Sri Ravi Gurung, I would like to present his brief profile here. Ravi Gurung is graduated in Fine Arts in Sculpture from Government College of Chandigarh, Punjab University in year 2000. Present he is working as an art teacher in DPS, Dalhousie, Himachal Pradesh since 2000. He worked as an art director with renowned Bollywood choreographer. His artwork are based on different medium like pencil color, watercolors, acrylic, oil colors, stone carving, wood carving, and casting, fiber, glass, metal casting, thermocol artwork, 3D work, etc. He has participated in various art exhibitions in different parts of the country. In 2010, he has been honored with Himachal Sea Award. I'm happy to have an artist like him before us today. Welcome, sir. Welcome, Ravi sir. Now, I request Ravi sir to start the program. Thank you, sir. Good afternoon, sir, and good afternoon to all of you present here. What to say about me now? Sir already told you everything. good af- Uh, good afternoon. now, yeah, actually, you see, uh, right now, what I'm going to teach, actually, here I think mostly the participants are from the school level. So, right now, we are planning then later what to do, like a professional work also. From today on, I'm going to teach you about the art. Actually, I'm always touching with sir. Also, I'm looking at your drawing. Also, sir. Sir is organizing so many competitions, activities. So here today, I'm going to tell you about the art, especially about the art. Actually, my specialization in sculpture. Although, but I'm working on with different art material, also painting, also sculpture, also. Okay, now see, listen to me, all of you here. See, what is art actually? Art, we talk about the art. Okay, here art it's not mean if you make a painting, sculpture, or anything that we call art. Art is actually the talent. In Hindi, we call it kala, and that is your talent. Okay, talent. It can be in your games also. Okay, it can be in like somebody play very good instrument also. How you play, you are the fingering on that. If you are playing a guitar also, okay, how you uh, hold the guitar, how you I mean uh, or anything else, or you can drum, you take a drum, or dancing also, that is also an art. Okay, but the art is your talent, your own talent. It's the talent is in everyone. टैलेंट सब में होता है, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा टैलेंट सब में होता है. इवन इफ यू सी लुक एट द योर होम, नियर बाय योर होम ओनली, डोंट गो एनी फार अवे. आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के पास ही देख लीजिए. लाइक अ बर्ड. ओके, आपने घोंसले देखे होंगे, यू हैव सीन द नेस्ट आल्सो. कितनी अच्छी बनाते हैं. इवन वी कैन नॉट मेक. आप कोशिश करिए कभी घोंसला बनाने की, वी कैन नॉट मेक. ओके, चींटियों को आपने देखा Yes, हुआ. या बिकॉज देखो, yes. आर्ट क्या होता है एक्चुअली. आर्ट निकलती है आपको आपके आमने सामने चीजों से, द सराउंडिंग थिंग्स विच इज अवेलेबल टू यू. एंड समटाइम व्हाट इज हैपनिंग, देखो आप ये लोग क्या, द पीपल व्हाट दिस इज, फॉर एग्जांपल, देन आई विल टेक अ न्यू पेज. आप ये सोचते कि आप एक घर, यू मेक अ वन हट हियर. ओके, you make a one hut here, then you make a mountain behind. Okay, then I make a bushes here, and
here I make a road, okay, and here tree itself here, ठीक है. तो see, इतनी ज्यादा चीजों को when we make a complicated, too much complicated, ठीक है, तो इसको भी आर्ट नहीं बोलते. इफ यू मेक अ सिंपल, यू मेक अ बॉल, इवन यू मेक अ सिंपल वन बॉल, ठीक है, एक सर्कल बना रहा हूं मैं. नाउ आई विल शेड इट, ठीक है, एंड आई विल टेल यू द डिफरेंट pencil, the paper, what we need required if you want to make up main some, maybe some of people or student, those are present here, you have a very good hand, and you always from childhood maybe you are doing, ठीक है, हो सकता है कि आप कर रहे हो. अब देखो इसको जो we are, I'm going to shade it now, then I will tell you slowly. Just look here, देख रहे हैं ना इसको आप, सर्कल को, एक सर्कल को, how you are going to present. And here sir was talking about me about the 3D also, 3D also, 1D 2D 3D. देख लो इसकी, देख रहे हैं आप इसको, एक सर्कल को भी how you are going to present a circle, ठीक है, that is also an art, ठीक है. Here I am not talking, if you make a mountain, you make a portrait, then only that is art. Art is the basically how you hold the pencil, how you use the thing. देखो पकड़ने का तो सबका अपना अपना ढंग है, everybody having their own technique, own way how they hold. कोई ऐसे पकड़ के लिखते हैं, कोई कैसे, ठीक है ना, लेकिन आपने यूज कैसे करना है, that is the main thing. And see, listen me now, because from last now sir already told you, from last 22 year I am teaching in a this itself in Himachal, Dalhousie Public School. It's very renowned, and it comes in a in India also very top school, in the among the top school. It's a boarding residency school, and I'm working as a artist plus as a art and craft teacher, drawing teacher. तो मतलब अब सी, आपने क्या करना है, मेन चीज ये होती है कि आपको देखो पेज होती है हमारे पास, दैट इज सिंपल, वन इज कार्ट्रेज, एक होती है कार्ट्रेज, वी कॉल द कार्ट्रेज. सेकेंड होती है हमारे पास आइवरी शीट, ओके. आइवरी शीट इज अ वेरी इन हैवी वेट, थोड़ी सी उसकी जो वजन होती है वो थोड़ी सी ज्यादा, आपको थोड़ी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना, थोड़ी हैवी होगी, भारी होगी वो. और दूसरी हमारे पास वी हैव लाइक हैंडमेड सीट्स, handmade seeds. Sometimes see, we have imported now in India, we are getting a imported chart paper also, like a Canson marble, that is of made in France. It cost around 400-500 rupees one chart. If we compare to the Indian this chart paper, तो हमें 5 रुपये 10 रुपये 15-20 रुपये में इजीली हम वी आर एबल टू गेट फ्रॉम द लोकल मार्केट. अगर आपने प्रोफेशनली बनानी हो कभी, ठीक है, देन that is very costly, like आपको तो from like maybe from Calcutta or Siliguri, I don't think. Yeah, it's a Canson made in France and German. And see now, I told you, and see for especially this cartridge sheet, ये तो आप जो आपके पास the drawing जो कॉपी आपके पास होती है उसमें भी वो कार्ट्रेज शीट होती है. साइज इज डिफरेंट, लाइक A3 A4. Okay, here which the paper I am using here today, it's a A4 my, okay. And see, listen to me now, come to next, we come to the pencil. Maybe you have already been taught in the school from your subject teacher, art teacher, बता दिया होगा आपको, लेकिन फिर भी just for introduction, see I am using this Staedtler, ठीक है ना, Staedtler I keep on using this for pencil shading, my pencil shading work, pencil work, artwork. This you already know. This comes, you just keep 1 2B. Take HH pencil is also there. HS pencil is also there. HS pencil, double H. This is specially for the, if you want to make some like engineers, architects, they use this pencil. It works very light, ठीक है, light use. इसकी ना जो आपको मतलब बिल्कुल हल्की चलेगी. एंड देन इट कम्स HB पेंसिल. HB पेंसिल तो नॉर्मली जैसे नटराज, डोम्स, अदर, ओके. देन इट कम्स 2B, देन यू गो लीव one number, then go to 4B, 6B, 8B, 10B, then 12B, then EE.
EE. See, EE is also pencil there. It comes in a standard double E. Okay, double E. Double E. See here, you can see here it's written on my pencil double E. ठीक है, it's work very black. ये देखो पेंसिल कलर की तरह जैसे ब्लैक पेंसिल कलर होती है वैसी चलती है, देखो इट्स डबल ई, ठीक है ना। तो आफ्टर इट फॉर स्कूल लेवल नाउ वी कम्स स्केच कलर। स्केच कलर आपके पास कोई भी जैसे 12 कलर का हो, ठीक है, 12 शेड्स का हो, चाहे 24 चाहे 48। सिमिलर we have another like a acrylic color, then poster color, then watercolor. अब देखो poster color and watercolor, what is the difference? Then we will start the work in poster color. The number of the color quantity, जो उसमें जो कलर होगा ना वो ज्यादा हम डालेंगे, और जो मतलब 90%, जस्ट टेक 80 to 90% एंड 10% वाटर उसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। उसमें एक्चुअली पोस्टर कलर का नाम ही पोस्टर ऑलरेडी उसके नाम से क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई विल शो यू दैट कलर आल्सो, कलर बॉक्स आल्सो। सी इट्स रिटन कैमल पोस्टर कलर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पोस्टर हम जैसे कभी आपने देखा है जब कंपनी की जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ले लो लक्मे, ले लो लक्स, ले लो कोई भी, आपने उनकी देखी होगी। तो व्हाट जो अप्लाइड आर्ट वाले होते हैं, अप्लाइड आर्ट, okay, we have in fine arts, I have done fine arts in sculpture, okay, they have a graphic also. Graphic means those who become cameraman and other, and then we have a painting also, then we have a applied art. उनका काम होता है कि they makes like a logo डिजाइन करना है ना, मोनोग्राम, और कंपनी का जैसे प्रोडक्ट है आपका, उनके लिए सारा कुछ, तो दे यूज दिस पोस्टर कलर, और इसको हम बिल्कुल थिक वे में यूज करते हैं। देन कम टू द वाटर कलर। हाँ, वी हैव, और सब कलर में आपकी कैटेगरी होगी, यू विल गेट इन दैट वन इज स्टूडेंट बेस्ड कलर, अनदर इज आर्टिस्ट, ठीक है, प्रोफेशनली, इट्स कॉस्टली आल्सो। देन वाटर कलर में क्या होता है कि वाटर कलर वी वर्क इन अपोजिट वे, मतलब 90% वाटर होगा तो 10% कलर यूज होगा उसमें। इट कम्स इन ड्राई फॉर्म में मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा बॉक्स में। आई विल शो यू, वो छोटी छोटी सी टैबलेट होती है, केक्स लाइक केक्स होती है। इट कैन बी इन राउंड शेप आल्सो, it can be in a triangle also, it can be in a rectangular form also, it can be in square form also, okay, ठीक है। चलो, now I'm going to remove this, then let's start with the first today with this first we'll start with this our sketch color, okay beta, sketch color। See, nowadays, I suggest you, because now see from last year we have a lockdown. You are also not, I think you have not attended the period also. School are totally closed throughout the world, है ना। कहीं कहीं पर खुल रहा है तो फिर बंद हो जाता है। Even I am also taking my online classes from here only, from my home. So see, now I am taking a DOMS, or nowadays if some student, if you want to purchase, you can go for the DOMS color, ठीक है। मैं देखो I use the camel also, but especially where I found the very difference of this in oil pastel color, ठीक है। I have a oil pastel of this camel color also, camel company, and this DOMS also, but I prefer the DOMS. It's very good. देखो मेरे पास, it's not costly also, 30 rupees only just, but the things is how you are going to make a। अब देखो मैं ये बात कर रहा था ना कि टैलेंट है आपका, और देखो आर्ट होती कुछ भी नहीं है। आर्ट, सी आई वाज आल्सो लाइक यू व्हेन आई वाज चाइल्डहुड, इन अ स्मॉल चाइल्डहुड, तो मैं भी दूसरों का देखता था, तो आई थिंक कि मैं कैसे बनेगा, कैसे, बट सी इट्स नीड अ टाइम आल्सो, इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस, एंड art is actually all the drawing, it is based on geometry, ठीक है। जो ड्राइंग है ना ये पूरी ज्योमेट्री में, मतलब इसके बेस है इसमें। इफ यू आर मेकिंग अ पोर्ट्रेट, आप किसी का फेस बना रहे हैं, ओके, नाउ कम टू दिस, सी हियर, इफ वी ड्रॉ अ लाइन, फॉर एग्जांपल मैं इधर आई ड्रॉ अ लाइन, ओके, आई टुक अ सेंटर,
आई ड्रॉ लाइन। इसको हम 1D भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 1D भी बोल सकते हैं। एज सर बीबी गरंग सर was requesting me about this 3D art also. So here see what we are doing, it comes 3D also itself. If you look at my, see this drawing, this drawing is not complete right now, this drawing is not complete. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो ये 3D में खुद नजर आ रही है। इट्स बेस्ड ऑन, इट इज ऑन कैनवस एंड इट इज ऑल कलर, ठीक है, इट इज नॉट कंप्लीट। जब देखो हम व्हेन वी आर गिविंग अ शेडिंग आल्सो, ओके, यू कैन सी द डेप्थ आल्सो, दिखाई दे रही है ना आपको। देखो कोई चीज जब व्हेन यू फील कि यू आर इन्वॉल्व योरसेल्फ इन हियर, तो जैसे आप कभी देखते हो फिल्म देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, आप फिल्म देख रहे हो तो फिल्म में देखो आपको लगता है कि मैं भी वहां पर आ गया हूँ, सीन में चले गया हूँ, दैट इज व्हाट मीन 3D। ओके, नाउ लुक हियर, see sketch color actually uh, uh, एक्चुअली सी स्केच कलर, जब भी आपने अगर स्केच पेन से ड्राइंग करनी है ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डोंट यूज इन दिस फॉर्म। आपने ऐसे यूज नहीं करना है, देखो ऐसे यूज नहीं करना है, इसको दबाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसे दबा दबा के नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा, ये आपका स्केच कलर ना, ओके आपका क्या होगा, स्केच कलर एक ही ड्राइंग में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देन यू विल आस्क योर पेरेंट्स, जस्ट यू नीड वन मोर पैकेट। तो आपने क्या करना है, जब भी स्केच कलर यूज करना है तो स्केच कलर ऑलवेज वी यूज इन अ लाइन फॉर्म। ये देखो लाइन फॉर्म में यूज कर रहा हूं मैं, देख रहे हैं आप, ये देखो लाइन में यूज करना है, ठीक है। अब देखो ब्लैक कलर इज ऑल इटसेल्फ इट्स वेरी डार्क। अगर मुझे, अब देखो, अब ये देखो, अगर इधर मुझे डार्क करना है तो दोबारा से मैं ऐसे के ऊपर आई कीप ऑन डूइंग ऑन दैट सरफेस, तो खुद लाइन में यूज करना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से विद अ वेरी लाइट हैंड, डोंट प्रेस द फोर्स ऑन दैट दिस स्पेशली ऑन द कलर और वट एवर पेंसिल भी। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं इन स्कूल्स, ये देखो पेंसिल को ना ऐसे दबा के चलाते हैं, ऐसे विद द फोर्स, ऐसे दबा के गलती हो जाती है। इफ यू डू द मिस्टेक देन अगेन, जैसे इरेज करते थे उसका निशान रह जाता है, यू हैव सीन द इंप्रेशन आल्सो, उसका एक ना Yes, sir. निशान सा या लाइन सा बना रह जाता है उसमें। तो उसका रीजन क्या है कि आपने ना बिल्कुल लाइट हैंड से, बिल्कुल लाइट हैंड देखो, और लाइट हैंड ऐसे, ठीक है, बिल्कुल लाइट हैंड से ऐसे करना है यूज, Yes, sir. है ना, ठीक है, ऐसे यूज करना है। तो कलर को भी, स्केच कलर को देखो, स्केच कलर को अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि स्केच कलर कैसे यूज करते हैं। स्केच कलर इज स्पेशली फॉर, इट इज फॉर राइटिंग थिंग्स। अगर आपको स्कूल में कुछ आपने देखो, फॉर अगर आप ये मेकिंग साइंस डायग्राम, आपको कुछ लिखना है, टॉपिक लिखनी है, कुछ भी लिखना है, देन वी यूज डिफरेंट कलर ऑफ स्केच पेन टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, और ब्यूटीफुल। तो अब इसको अगर ड्राइंग पर्पज में यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब मैंने ये यूज ब्लैक कलर दिया, देखो अब इन, जस्ट वेट, ये देखो आपके सामने, देन आई टेक रेड कलर, रेड स्केच कलर, ओके, आई एम टेकिंग राइट नाउ रेड कलर, रेड कलर। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर मुझे आपको आपको दिखाई दे रहा है ना व्हाइट व्हाइट लाइन, इसके बीच में यूज करूंगा, देखो ये देखो, ऐसे लाइन में यूज करना है, ठीक है ना, लाइन में, ठीक। लुक हियर नाउ, हियर अगेन आई शो यू हियर द बिग, ये देखो लाइन में, ये देखो, और आपने घबराना नहीं है। देखो अगर लाइन इधर उधर चली जाती है, इफ द लाइन गोज हियर एंड देयर, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। देख रहे हैं आप, देखो मैंने लाइन जी, अब मुझे देखो, मुझे यहाँ पर थोड़ा डार्क चाहिए दिस साइड, तो मैंने इसको क्या किया, जहां पर डार्क चाहिए तो आई विल कीप ऑन डूइंग सेम प्लेस, उसी जगह मैं लाइन को बनाता रहूंगा, देखो हल्के हाथ से दबाऊंगा नहीं मैं कलर, आई विल नॉट प्रेस द स्केच कलर, ठीक है। ये देखो जैसे पेंसिल शेडिंग करते हैं ना हम, स्केच कलर को भी लाइन में यूज कर रहा हूं मैं, देखो डार्क होगी, देन नाउ आई एम टेकिंग अ रेड कलर, ठीक है, जहां जहां पर व्हाइट है उसके बीच बीच में अगर ऊपर चली जाए, इफ इट गोज ऑन द ब्लैक कलर आल्सो, ब्लैक कलर के ऊपर भी चली जाती है तो नो नीड टू वरी, ठीक है, जाने दो, लेट इट बी गो। देखो ठीक है, लाइन में, ये देखो लाइन में, ठीक है, लाइन में चली गई ये इधर,
then I am taking another color. अब देखो actually art is you have to play with the color. आपने कलर के साथ खेलना है। जैसे एक फुटबॉलर बॉल के साथ खेलता है ना, आपने देखा कि रोनाल्डो को देखा, मेसी को देखा कैसे खेलते हैं बॉल के साथ। ठीक है, गिटारिस्ट कैसे गिटार के साथ खेलता है, तबला वाला कैसे खेलेगा, ठीक है ना। इवन अगर कोई आपको, हम तो गांव में देखो पहाड़ों में क्या करते, कोई गुलेल चलाता है तो गुलेल के साथ कैसे खेलता है वो। ठीक है, दैट सेम थिंग, आपने बस खेलना है, कलर के साथ खेलना है, घबराना नहीं है। देखो आई एम टेकिंग ऑरेंज कलर नाउ, ये देखो फ्री हैंड में, बस ये देखो ऑरेंज, ऑरेंज आ गई। नाउ आई एम टेकिंग स्काई ब्लू। जितने कलर आपके पास है ये देखो, हाउ मेनी कलर डू यू हैव, ये देखो लाइन में यूज करना है बस, लेफ्ट टू राइट, एंड दिस वी कॉल्ड हॉरिजेंटल। ये जितनी भी लाइन, जो स्लीपिंग लाइन होती है, जो द लाइन विच गोज टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे कोई लेट सो जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं, तो उस समय पोस्चर को बोलते हैं हॉरिजेंटल। कोई खड़ा हो जाता है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक पोल, trees, that we call the vertical. Even in the maths also you have heard vertical line, horizontal line, diagonal line, crossing line, ठीक है ना। देखो अब ये मैंने I use this now, after it I am taking a dark blue, जो मेरे पास मिल रहा है कलर, ठीक है ना। ये देखो आप लोग देख रहे हैं, ये देखो अब मैं इसके पीछे देखो, अब मैं आई एम टेकिंग ऑरेंज कलर, अब आई वांट टू मेक अ स्काई आल्सो। देखो ये देखो, ये देखो लाइन में देखो, जिग जैग लाइन, zigzag line, and here I want dark because this is the meeting point, ठीक है, and here I'll make a round shape, ये देखो, देख रहे हैं, and some line here, ये देखो, then I will take a yellow color, this yellow color, okay, lemon yellow you can say, ये देखो, and please I request all of you, yellow is that color we use in every painting. आप लोग देखो ख्याल रखना, कभी भी अगर इफ यू आर यूजिंग ऑयल पेस्टल कलर और ऑयल कलर और कोई भी, तो येलो कलर का पक्का यूज करने की कोशिश करना। इट्स ब्रिंग अ फ्रेशनेस इन योर ड्राइंग, ठीक है। इससे आपकी ना ड्राइंग बड़ी, नहीं तो डल डल लगती है कितनी बार। इससे क्या होती है, आपकी कलर में ड्राइंग में एक फ्रेशनेस आती है, मतलब ताजी, जैसे बोलते हैं ना हम, व्हेन यू गो टू मार्केट, आप बोलते हो कि हाट बाजार में भी जाती है आप लोग, आप बोलते हो कि ये सब्जी तो बड़े दिन का है, ठीक है ना, उसमें एक ना ताजी, बोलते हैं ना अभी भी फ्रेश तोड़ के लाए हैं वैसी, ठीक है। हियर आल्सो लुक हियर, येलो कलर आई यूज हियर आल्सो, देखो लाइन में यूज हो रहा है, दिस इज द स्केच कलर, हाउ आई एम यूजिंग नाउ, आई विल मेक सम हियर लाइक दिस, ठीक है, दिस इज लाइक आर, हम बनाते हैं आर, सम बिग सम स्मॉल। देखो आपने एक चीज और ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने, आई टोल्ड यू आर्ट इज नथिंग, आर्ट इज ए मैथ्स, ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि इवन व्हेन आई एम टेकिंग माय क्लास ऑफ माय स्कूल, तो सम ऑफ स्टूडेंट दे सेज कि सर माय ड्राइंग इज नॉट गुड, now they have improved, now they are taking interest and they're saying sir, how it's possible, I told them कि this is nothing, this is only drawing, और first thing we have to be always positive, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सोचोगे कि मैंने कुछ करना ही नहीं है, तो फिर you cannot do anything। अब even some of parents they speak to teachers also कि सर मेरा बच्चा ना मैथ्स में बड़ा कमजोर है, और बाकी सब्जेक्ट में अच्छा है वो, और तो वो मीन इफ ही इज गुड इन मैथ्स अदर सब्जेक्ट ही इज गुड इन, बट ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब इधर ना वी आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव का मतलब आपको पता होगा, ड्राइंग में ये पक्का ख्याल रखना है, जो अभी 3D भी बनाते हैं हम लोग, उसमें पूरी पर्सपेक्टिव का गेम है, पूरा रोल पर्सपेक्टिव का है। कोई चीजें देखो दूर नजदीक, शो यू हियर अदर थिंग आल्सो, वेट बेटा, सी लुक एट दिस, आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट कंप्लीट, ये भी अभी मेरा ड्राइंग चल रहा है, ठीक है। इट इज ऑयल पेंटिंग, इट इज बेस्ड ऑन ऑयल पेंटिंग एंड कैनवस। आप देख रहे हैं इसमें, आपको लग रहा है ना 3D, इसमें डेप्थ भी, ये देखो वो चीज रियल मतलब नजर आनी चाहिए आपको, ठीक है। इट इज ऑन कैनवस, इट इज ऑल कलर, मीडियम इज ऑल कलर, ओके। तो आप यहाँ पर देखो, अब उसके बाद अब पर्सपेक्टिव, आई वाज टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव होती है कोई चीज, देखो हम लोगों ने, आपने देखा होगा जब आप जाओ एनजीपी जा रहे हो आप, ठीक है, एनजीपी जाते हो, देखो यहाँ पर ट्रेन का देख रहे हो आप, देखो
दूर वाली देखो ट्रैक कितनी नजदीक क्लोज है, देख रही हो क्लोज। अब जैसे ये इधर आएगी आपकी क्लोज आ रही है, तो इतनी देखो इसकी डिस्टेंस आल्सो, द गैप भी बढ़ रही है, इसकी डिस्टेंस भी बढ़ी, ये देख रही हो ना। दिस इज वी कॉल द पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, इसमें क्या होती है कि हमें कोई भी जो दूर की चीज है, द थिंग्स विच इज फार अवे फ्रॉम अस, जो चीजें हमसे दूर हैं वो छोटी नजर आती है। जैसे आप रेलवे ट्रैक में खड़े होकर देखते तो पार वाली ट्रेन आपको बिल्कुल छोटी लगती है, जैसे वो आपके नजदीक आएगी वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, दिस इज पर्सपेक्टिव व्यू। सिमिलर हियर, ये देखो ये अब मैं यहाँ पर घर बना दूंगा, ये देखो इसके बीच में, ये देखो वन हट हियर आल्सो, आई मेक अ हट, देख रहे हो ये, लुक हियर, हियर, ये देखो, ये देखो पीछे वाली घर छोटी होती जा रही है, फ्रंट वाली आपको बड़ी नजर आ रही है। ठीक है ना, ये चीजें हमने अब यहाँ पर कम टू हियर अगेन एट दिस स्केच, दिस इज मीडियम स्केच कलर है। ओके, अगर आप आगे से भी कभी भी आप कंपटीशन में कहीं पर कुछ करना चाहती हो, इट इट डोंट टेक टू मच टाइम आल्सो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें और जल्दी बन जाती है। आप जेब में डालो और जाके फटाफट ड्राइंग करके आओ। ठीक है, बट सी इन दैट आल्सो आपके देखो वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स इन अ कॉम्पिटिशंस। हम उसकी उसके कंपोजिशन भी देखते हैं, कलरिंग भी देखते हैं, नीटनेस भी देखते हैं। तो आपको यहाँ पर बॉर्डर लाइन भी छोड़नी पड़ेगी, बॉर्डर लाइन, और लीव लीव हियर ऑलरेडी माई दिस प्लेस इज वाइट। ठीक है, अब देखो, अब मैं कुछ बर्ड ना बिल्कुल छोटे बनाऊंगा, ये देखो बिल्कुल छोटा बना रहा हूँ, देखो छोटा बन गया ना, ये देखो, और ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है, इट सिम्स इट्स द बर्ड इज फ्लाइंग वेरी फार अवे। ठीक है, और मैं कुछ बर्ड को थोड़ा क्लोज करना चाहता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो आ गया ना, ये देखो कितना हो गया बड़ा, देखो, और ये देखो, और जितना पिछला जो दूर वाला होगा ना उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, आई एम यूजिंग राइट नाउ स्केच कलर, नहीं तो हम पेंसिल में तो क्या होता है, बिल्कुल हल्का सा ना, बिल्कुल हल्का सा एक इंप्रेशन, बर्ड नजर हल्का सा कुछ चीज उड़ रहा है पीछे, बर्ड। ठीक है, तो कुछ बर्ड बड़े बनाने हैं आपने, कुछ छोटे, ऐसे डिफरेंट साइज हियर। ठीक है, अब सम हियर आल्सो, देखो मैं, ऐसा लगेगा जैसे पानी के ऊपर उड़ रहा है, देखो, ये देखो, ये अब इसको मैं और डार्क कर दूं इस जगह को, ये देखो ब्लैक लाइन से, लाइन में चलाना है, ऐसे लाइन वर्क में, और आपने प्रेस नहीं करना है कलर को। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, देख रहे हो, एंड हियर ओके, आई विल यूज मार्कर आल्सो नाउ, थोड़ा सा मार्कर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, मार्कर आल्सो। अब इसके बीच में अगर मुझे कुछ बनाना हो, ठीक है, इफ आई वांट टू मेक अ कोकोनट ट्री आल्सो, ये देखो दो लाइन बनाई मैंने, ये देखो, और एक लाइन है ये, दिस इज ऑल द दीज आर द शेप्स ऑफ ड्राइंग। ठीक है, ये चले गए इधर। नाउ आई मेक अ हियर दिस, ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, एक्चुअली ये देखो इसमें हमने डिस्टेंस भी देखना है, डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पर आ गए, एंड सम हियर डाउन। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक हट हियर यू कैन मेक, ये देखो लाइन में चलेगा, जैसे मैं स्केच मार्कर को भी आपने यही सोचना कि स्केच कलर की तरह ऐसे चलेगा सारा कुछ ना। ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं ये देख रहे हैं स्केच पेन का, दिस इज द टेक्निक, the way how to use sketch pen, sketch color. Otherwise sketch color specially we use, I told you already, those who are present here participant, कि मतलब स्केच कलर तो इट्स वी यूज फॉर राइटिंग पर्पस। ठीक है, कभी आपने चार्ट में कुछ लिखना हो, कोटेशन लिखना हो, मैथ्स का कुछ, हिंदी का पोएम लिखना हो, तो टीचर से इसकी किसका हैंड राइटिंग अच्छा, वो चार्ट में लिख के लाएगा। ओके, तो उस पर्पज में, अदरवाइज अगर आपने कलर भी करना होगा तो इस ढंग से करना है। ओके, डोंट गो ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं करते रहना कलर। ठीक है, ओके, नाउ विल नेक्स्ट विल स्टार्ट विद दिस नाउ oil pastel color. See, right, actually today is the first time I got a very good great opportunity due to BB Gurung sir. So, from next time when again if I'll get a chance opportunity, then I will teach you some then typical more professional. Okay, today actually it's the first day, because mostly this is the sir told this actually for keeping this
for keeping this today's program, this all sir what is keeping for this is for children actually. Okay, तो मैंने सोचा कि तो of school level I should go at a school level, the things should not go more professional and high. ठीक है, that we can plan, it can be high also, it can be more tough also. ठीक है, now देख रहे हैं ऑल ऑफ यू अगेन। और आपने एक चीज और इसमें देखो, आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, फिर भी जिनको अगर पता भी नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस हमेशा देखो पेपर में हमारे देखो कुछ पेपर होते हैं कि जो दोनों साइड ना प्लेन होती है, लेकिन अगर आप इसको टच करेंगे ना, टच करेंगे तो आपको एक तरफ ना एक रफ मिलती है, एक मतलब रफ साइड होती है। हमेशा हम रफ साइड यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। क्यों? अब देयर इज अ क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि हर चीज का क्वेश्चन होता है। यू आल्सो आस्क, जब आपके पेरेंट्स बोलते कि बेटा गो टू और बेटी उधर जाके आओ, तो आप बोलते क्यों पापा, किस लिए जाना है? तो फिर पापा बोलते कि उधर आपने सामान लेके आना ही है। क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑलवेज बी पुट क्वेश्चन, है ना। हम क्वेश्चन मार्क तो हम हमेशा हम लोग पूछते ही हैं, बिकॉज रफ साइड में क्या होता है कि आप यू ट्राई स्पेशली यू टेक अ चार्ट पेपर ले लेना, उसमें आप देखो कलर करके देख लेना। एक प्लेन साइड में करना, उसमें कलर ही नहीं चढ़ेगा पहले बात तो, ठीक है, स्लिप करेगा कलर। और जो रफ साइड होगी ना, उसको बोलते हैं टेक्सचर, उसमें खड्डे होते हैं बिल्कुल, और उसमें कलर बड़े अगर आप लोगों ने किसी ने अगर ग्रीटिंग कार्ड बनानी हो कुछ, जैसे आप लोग ग्रीटिंग कार्ड कुछ बनाते हैं, तो फॉर दैट वी टेक वी फॉर दैट वी टेक आइवरी सीट, ठीक है ना, आइवरी सीट लेते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद ऑयल पेस्टल कलर। ऑयल पेस्टल कलर बेटा, ऑल ऑफ यू ये देखो मेरे पास आई हैव दिस अगेन डोम्स कलर, ठीक है। एक्चुअली मैं ये रखता हूँ मेरे एक्चुअली ओके, नाउ जस्ट आई विल ट्राई टू ओके, इसी में कर रहा हूँ मैं। ओके, नाउ अगेन देखो, अब ऑयल पेस्टल कलर, ऑयल पेस्टल कलर अगेन मैं आई एम टेकिंग अ येलो कलर। ओके, येलो कलर, इट इज राइट नाउ दिस येलो, मीडियम येलो। ओके, तो अगेन हमेशा आपने क्या करना है कि कभी भी एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू, कि क्या होता है कि समटाइम वी हैव टू सिलेक्ट द कंपोजिशन आल्सो। कभी क्या होता है कि अभी जैसे मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ तो इट्स इन अ वर्टिकल वे में बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मेरी कुछ ड्राइंग, अगर मैं अगर इसको मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, तो सम ऑफ कंपोजिशन, इसको कंपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन की आप इतनी सारी चीजें कंपोज करने लगे, जैसे गाने में बोलते हैं कि कैसे गाना कंपोज किया है, ठीक है ना। तो यू हैव टू सी द कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू, अगर आपके पास मान लो कि आपके पास यू हैव टू मेक ट्री, स्टैंडिंग ट्री, आप ट्री की बना रहे तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा सिर्फ आपको, क्योंकि राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन ट्री ओनली। आप बोलोगे कि यू कैन मेक एन हॉरिजॉन्टल आल्सो, दैट वी कैन डू, बट ट्री के साथ फिर आपको कुछ हार्ट भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पेज की, ठीक है ना। तो मोस्टली हमने ये क्या करना है कि ट्राई टू कवर द पेज विद द पेपर विद योर the ideas with the your composition with the your drawing. Okay, I will not use pencil right now, directly I'll use the this color. Look here now, ठीक है, मैंने ऐसे किया। और कलर को हमेशा देखो बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप कलर यूज करते हैं तो देखो, ये देखो क्लोजली, ये देखो जहां पर आपको डार्क चाहिए वहां पर थोड़ा प्रेस करना है। ये देखो ऑयल पेस्टल का देखो, आई एम शोइंग यू इन अनदर पेज। ये देखो आई एम, अभी मैं थोड़ा सा जोर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ना मैं जोर लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस कलर, और जहां पर मुझे डार्क चाहिए तो आई एम प्रेसिंग द फोर्स, और जैसे इसको मैं फोर्स को रिलीज करना है, देखो हल्के हाथ से, फिर देखो लाइट लाइट होती जाएगी, देखो येलो, ये देखो, देख रहे, ये देखो लाइट हो गई, ठीक है, लाइट हो गई। तो मैं यहाँ पर द सेम टेक्निक आई विल अप्लाई हियर, डाउन पार्ट इट विल बी डार्क, एज आई मूव अप इट विल बी लाइट। ये देख रहे, ये देखो, ये देखो मैंने और कुछ हिस्सा ना मैंने व्हाइट छोड़ दी है,
ठीक है, दिस इज येलो कलर। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप लोगों ने हमेशा येलो कलर हर ड्राइंग में यूज करने की कोशिश करना है, येलो कलर, थोड़ा बहुत येलो कलर, ठीक है ना। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन ऑरेंज कलर। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि सर इज यू टेकिंग अगेन ऑरेंज एंड दैट कलर, आप इसकी जगह में ब्लू भी ले सकते हैं, यू कैन टेक अ ग्रीन ऑल्सो। ठीक है, अगर ये भी नहीं कि स्काई का कलर ऑरेंज और यही यूज करना है। अगर मान लो कि आप किसी ने अगर ग्रीन कलर का चश्मा लगाया हुआ, ग्रीन कलर के कलरफुल भी मिल जाते हैं ग्लासेस, तो आपको क्या नजर आएगी, सारी चीज तो नजर आएगी ना सेम, सिर्फ कलर का उसका टोन चेंज हो जाएगा ना, टोन शेड चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में नजर आएगी सारा कुछ, है ना। तो वी कैन गो फॉर दैट आल्सो। ये देखो नीचे भी, अब मैंने यहाँ पर प्रेस किया, ये देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और ये देखो जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फोर्स को छोड़ रहा हूँ। देखो जैसे मैंने स्केच कलर से किया वैसे मैं ऑयल पेस्टल को भी यूज कर रहा हूँ, देख रहे हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आई आई मेड अ स्मॉल डॉट, देन आई एम, देखो अब मैं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ ब्लैक एंड आई एम मेकिंग अ बोट हियर। ये देखो सिंपल, दिस इज व्हाट हाफ सेमी सर्कल, आपने देखा होगा हाफ सेमी सर्कल, इट कैन बी इन एनी शेप। ठीक है, तो मुझे अपनी कंपोजिशन देखने की, विच विल लुक नाइस। अब मैंने ये बना दिया बोर्ड को। ठीक है, एंड आफ्टर दिस, ये देखो अब ये मैंने कर दिया यहाँ पर। रेड कलर, ये देखो रेड कलर ले लिया मैंने, और मैं लाइन में यूज कर रहा हूँ, देखो लाइन, इधर ऊपर भी हम, ये देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आई विल टेक अनदर कलर। देखो आप जितना भी कलर करो, आपको मैं बोल रहा हूँ ना कलर के साथ खेलना है। ये देखो स्काई ब्लू कलर आओ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, जहां जहां पर मुझे थोड़ा वाइट वाइट खाली जगह नजर आ रही हो। ये देखो दिस इज स्काई ब्लू, आई विल टेक ऑल द कलर। अगर आप बोलोगे कि किस से, अब मेरे पास जितने, अगर मेरे पास 200 कलर भी होंगे ना, 200 कलर, तो मैं 200 भी यूज कर लूंगा इफ आई है। ये देखो आपके सामने यूज किया, आई विल यूज पैरेट ग्रीन आल्सो। ये देखो पैरेट ग्रीन, ठीक है, ये देखो पैरेट ग्रीन भी यूज कर रहा हूँ, इधर भी यूज कर रहा हूँ, देखो ये देखो पैरेट ग्रीन, देन आई विल यूज जो भी मेरे पास जितने भी ब्लू की शेड है, देखो डार्क ब्लू आल्सो, सम हियर आल्सो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी कुछ आई विल टेक हियर, इसको थोड़ा सा मैंने क्लियर करना है, दिस व्हाट आई एम मेकिंग हियर, थोड़ी सी इसको मैंने मेकिंग इट क्लियर। एंड अगेन येलो कलर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर येलो कलर का यूज कर दिया, और बीच बीच में देखो येलो कलर, जैसे मैं येलो कलर आई एम यूजिंग द येलो कलर, जैसे मैं येलो कलर यूज करता हूँ तो इट चेंजिंग द सी, उसकी ना ब्यूटी एंड द इम्पैक्ट, देख रहे हैं आप लोग। ये देखो, ये देखो येलो कलर थोड़ा थोड़ा कहीं पर मैंने प्रेस कर दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आई मेक अ सम वन फिगर, इसके बीच में आई मेक अ वन फिगर। ठीक है, अब इसके साथ मैं आई वांट द क्लोथ कलर हियर, आई टेक अ ग्रीन कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कलर का इसका शर्ट। ठीक है, अब मुझे नीचे इसका, ये देखो लेग पार्ट भी। ठीक है, एंड हियर ये देखो, अब इसके हियर इसका, इसके बाजू भी, हैंड भी। ठीक है, एंड हियर होल्डिंग, ये देखो। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। ये देखो अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा, थोड़ा सा इसको विद द लाइन, ये देखो लाइन अब थोड़ी सी, ये देखो। एंड मतलब आप देखो मेरे पास जितने कलर है ना हियर, जितने कलर हैं, मैं सारे कलर इसके ऊपर, देखो आपके सामने जो कलर मुझे मिलता है, आपने, मैंने बोला ना जैसे प्लेयर कोई गेम वाला खेलता है, अपने गेम के साथ बॉल के साथ खेलता है, तो आपने यहाँ पर कलर के साथ खेलना है। ठीक है, एक साइंटिस्ट होता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, अपने डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलते हैं, साइंटिस्ट अपने उनके साथ केमिकल के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ
है ना। तो आपने यहाँ पर जो भी आपके पास जितने भी कलर हैं उसके साथ खेलना है, विदाउट घबराना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं है आपने। और आपने ये चीज रखना, ये देखो आप पिंक कलर भी यूज कर रहे हो, ये देखो पिंक आल्सो, ये देखो आई एम यूजिंग पिंक आल्सो, ये देखो, ये देखो होली देखा ना आपने। यू जस्ट, अगर आपने कभी अपनी फोटो देखना नॉर्मली ऐसे, आपको और टाइम में देखो आपको कैसा लगेगा, और होली के टाइम में इतना अच्छा लगेगा कि आपके चेहरे में इतनी डिफरेंट कलर लगी हुई है, गुलाल, ओके, येलो कलर आल्सो, नीली भी, पीली भी, हरी भी, होली कितना अच्छा लगता है, देखो नेचुरल लगता है। ओके, तो हियर सी आई एम यूजिंग ऑल द कलर, बट आपका ये होना चाहिए कि आपकी दूसरी एक चीज और आपने ख्याल रखना है, व्हेनेवर यू मेक अ ड्राइंग, आपका विजन, एक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए, आप बना क्या रहे हैं। जैसे अगर आपको, हम किसी को पूछे कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, वो बोले कि मुझे पता ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो आपका मतलब वो और मार्केट किस लिए जा रहे हो, पता नहीं, मैं ऐसे, तो मतलब सामान लेने जा रहे हैं, क्या सामान लेने जा रहे हैं, वो प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या बना रहे हैं आपकी। वो बनाने से पहले ना आपकी ना वो जो चीजें हैं, वो जो चीज आपकी दिमाग में बैठी वो आपको पेज पे नजर आनी चाहिए, ठीक है। दैट थिंग शुड बी रिफ्लेक्ट ऑन योर पेज। तो वो आपकी, जब तक आपकी विजन, आपकी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, आप बना नहीं सकते हैं। तो आपकी फिर आपको बार बार मिटाते रहना पड़ेगा। एंड आई सजेस्ट यू एंड आई रिक्वेस्ट यू, अवॉइड द इरेजिंग पार्ट, ठीक है। इरेजर से हम बार बार मिटाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया इन बिगनिंग आल्सो कि व्हाट यू डू, यू ट्राई टू अवॉइड द दिस प्रेसिंग पेंसिल। आपने हल्के हाथ से बनाओगे ना तो पेज भी गंदा नहीं होगा और आपकी ड्राइंग भी अच्छी बनेगी, ठीक है ना, आपकी ड्राइंग भी अच्छी बनेगी। Okay, now look here. This is now, I'll make it this line clear. This line is clear because this is the part of, and see, अब हम इसको, कुछ लोग ना इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि कितनी अच्छी सीनरी है, ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं कितनी अच्छी सीनरी है, सीनरी भी बोलते हैं। और हम लोग इसको लैंडस्केप भी बोल सकते हैं। लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन, लैंड मतलब क्लियर है कि जमीन, रिलेटेड टू अर्थ, एंड स्केप मतलब स्काई हमारी, लैंडस्केप भी बोल सकते हैं, सीनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड सी स्केप भी बोल सकते हैं। नाउ इसमें वाटर भी है एंड स्काई भी है, स्केप, सी स्केप, आई राइट हियर, देखो लैंडस्केप, देखें आप, लैंडस्केप। और आप लोगों की हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, लैंडस्केप, सी, सी स्केप, ठीक है ना, देख रहे हैं कर्सिव में, देखो सी एंड स्केप, स्काई से रिलेटेड, ठीक है ना, अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे मेरी बात, देखो, ठीक है। और सीनरी तो हम बोलते ही हैं कि कितनी, हम बोलते हैं ना, जैसे बिकॉज यू आर फ्रॉम कालिम्पोंग एंड अदर प्लेस, तो पहाड़ों में तो हम बोलते हैं देखो कितना अच्छा सीनरी है, देखो सामने कितनी अच्छी धूप निकली है, बादल देखो, ठीक है, ओके। दिस इज ऑयल पेस्टल, बट सी बिफोर आई क्लोज दिस ऑयल पेस्टल वन, तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग अगेन। नाउ हियर कम्स द मिक्सिंग, देखो मैंने इतनी कलर मैं यूज कर रहा हूँ, फिर भी वो ना हर कलर आपको नजर आएगी। इफ यू लुक एट हियर यू कैन सी हियर द पिंक कलर, हियर पैरेट ग्रीन, हियर डार्क ग्रीन, हियर सम ब्लू कलर। अगर मैं, आप इसमें और भी डार्क ब्लू और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और भी यूज कर सकते हैं डार्क ब्लू। यहाँ पर ये देखो, ये देखो मैं और डार्क, ये देखो, ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ और डेप्थ, ये देखो, ठीक है, ठीक है, हियर एंड दिस पार्ट आई मेक लिटिल बिट डार्क, and see, uh, uh, it's, we are very lucky that we are sitting here together due to here our Bibi Gurung sir, and see, it's a, you are also mean, I can say कि all we are thankful, देखो आप लोगों को भी कुछ सीखने का मिल रहा है। और और मुझे भी देखो, इट्स आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। देखो आई वाज टॉकिंग टू यू फॉर दिस मिक्सिंग ऑफ द ऑयल पेस्टल कलर। देखो अब आती है मिक्सिंग, मेन चीज होती है गेम। देखो इसमें ना, जैसे आप अब सिंपली देखो, अब मैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम द दिस दैट साइड, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो गिटार आपने देखा ना, एक कोड को छोड़ते ही दूसरे कोड को,
कैसे पकड़ते हैं, उसमें ना ब्रेक नहीं होनी चाहिए, आराम से एक रिदम होनी चाहिए, रिदम। तो कलर की भी एक रिदम होती है, फ्लो होती है, ठीक है। हाउ टू मिक्स नाउ, ये देखो, आप देखो, मैं येलो कलर को मैं फैलाता हूँ थोड़ी, अब आई विल टेक अ मोर प्लेस, तो आपको इजीली दिखाई देगा, ठीक है। अब मिक्सिंग कहाँ पर हो रही है, देखो अब मिक्सिंग कैसी होगी और कैसे होगी, देखो अब मैंने लाइट कर दिया, ये देखो, अब मिक्सिंग इस जगह होगी, मिक्सिंग इस जगह होगी जहां पर कि ये आपको नजर, जहां पर मैंने मतलब यहाँ पर लाइट कैसी हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आई आई हैव नॉट अप्लाइड द फोर्स ऑन माई कलर, मैंने कलर के ऊपर जोर नहीं लगाया है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हल्की हो गई। अब अगर मैं देखो, अगर मैं इधर, इफ यू लाइक कि आप ग्रीन कलर यूज करना चाहते, लीव ऑरेंज कलर, ठीक है ना, आप बोलोगे कि सर इज टेकिंग, देखो हरा कलर, हरा कलर यूज कर रहा हूँ, देखो इसके साथ। अब देखो जहां पर ये लाइट होगी ना, वहां पर बिल्कुल हल्के हाथ से दोनों को मिक्स करना है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी मिक्सिंग होती है, हाउ द, देखो मिक्सिंग ब्यूटीफुली इट इज गेटिंग मिक्स विद ईच अदर, द बोथ कलर्स, देख रहे हो, ये देखो ग्रीन कलर, देखो लाइट, दिस इज पैरेट ग्रीन, आई एम मिक्सिंग विद द येलो, ये देख रहे हो, देखो कितनी मिक्सिंग, ये देखो ये मिक्सिंग, ये देखो, ये देखो, ठीक है, देख रहे हो। अब ये देखो, अब इसके साथ मैंने देखो, मिक्सिंग का मेन ख्याल रखना है आप लोगों ने बेटा, मिक्सिंग कहाँ से कैसे होगी, आपने बिल्कुल हल्के हाथ से ना, बिल्कुल विद लाइट हैंड, जहां पर आप मिक्स करना है तो वहां पर बिल्कुल आपने ना ताकत नहीं लगानी, जोर नहीं लगाना है, जोर नहीं लगाना है, ठीक है ना। आप, हाँ दूसरी चीजें खाते हुए, हाँ आप पिज्जा खाते हुए जोर लगा लो, हाँ नॉन वेज खा रहे हो तब जोर लगा लो, मटन पे लगा लो, चिकन पे लगा लो, लेकिन कलर के ऊपर मत लगाना, है ना। ये ना हो कि कलर टूट जाए आपका, और आपके पेरेंट्स बोले कि तो अभी तो आपको लेके दिया और आपने कलर तोड़ दिया, इट शुड नॉट हैपन। हाँ तो आपने हल्के हाथ से वो करना है, ठीक है। अब देखो ये, अब देखो, अब ग्रीन के साथ आई विल यूज रेड कलर आल्सो, ये देखो, अब यहाँ पर रेड कलर भी यूज करूंगा, ये देखो मिक्सिंग कर रहा हूँ इन दोनों को, ये देखो ग्रीन और ये देखो, अब यहाँ पर ये देखो, फ्रॉम बॉटम आई एम टेकिंग इट अप, दिस इज द बॉटम एंड आई एम टेकिंग अप साइड, ये देखो, ये देख रहे हो आप। अब देखो, अब मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया कलर, बिल्कुल लाइट हो रही मेरी कलर, देखो ग्रीन के साथ मिक्स करना है ना मैंने, ये देखो, और इधर ना पैच नजर नहीं आनी चाहिए, आप अगर पैच नजर आ जाती है आपके, देखो अब आपकी इधर ना एक, ये देखो, देख रहे मिक्सिंग। अब ये देखो, इसको हल्का करना है, जहां जहां पर आपको लग रहा है कि लाइन नजर आ रही है, तो इस लाइन को ना आपने थोड़ा सा दूर करना है। इसको दूर करने के लिए व्हाट यू विल डू, जस्ट विद द लाइट हैंड, ये देखो हल्के हाथ से, ठीक है। और कुछ लोग करते हैं जैसे टेक्निक, वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक, कुछ लोग पेंसिल शेडिंग के समय क्या करते हैं, कॉटन यूज करते हैं, कुछ थंब से ऐसे करके, जैसे पेंसिल शेडिंग के लिए, ठीक है, ऐसे मिटा के करेंगे, कुछ कपड़े से करते हैं, ठीक है, दैट इज वी कॉल द टेक्निक, दैट इज टेक्निक। Otherwise, if you look at here, uh, just wait, beta, all of you. I want to show you something. Uh, just I want to show you something. In fact, I was talking to our sir also, Guru sir also. Look here now. I'll show you some of this. Now you look at this ऑयल पेस्टल, ओके, ये ऑयल पेस्टल से किया हुआ, देखो कुछ नहीं है, सिंपल, देख रहे हैं आप लोग, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, देखो कुछ नहीं है, देखो देख रहे हैं। इसमें अगर आप ज्यादा सोच के, थोड़ी सी ना आपको ना थोड़ा कुछ, आप कोई डाउन कोई देखो जानी चाहिए, ठीक है ना, इससे क्या होती है कि देखो एक नेचुरल इफेक्ट आता है, ठीक है। दिस इज ऑयल पेस्टल कलर हियर, here, see, this is pencil shading, okay, here I use some finger also, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने, देखो आपको, देखो ये देखो फिंगर का ना हल्का हल्का ऐसे यूज कर दिया, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रोसेस टेक्निक, एक्चुअली करते हैं, देखो मोस्टली करते हैं लोग, सारे कर रहे हैं आजकल, कुछ कपड़े लेके थोड़ा सा इसको मर्ज करेंगे, बट आई प्रेफर डोंट यूज दैट। इफ यू लुक अदर ड्राइंग, ये देखो, अब ये देखो, आप देखो हियर, लुक एट दिस ड्राइंग, आई, इसमें मैंने देखो कुछ भी यूज नहीं किया विद पेंसिल ऑनली, इसमें मैंने कुछ ना, मैंने इसमें थंब यूज किया, आप देख सकते हो सम क्रॉसिंग लाइन, जिगजैग लाइन, ये देखो, ठीक है ना, गॉट इट बेटा। इसमें दिस इज, सी, हर उसका ना अपना एक टेक्निक का भी अपना वो होता है। नाउ सर वाज, इन फैक्ट सर वाज टॉकिंग टू मी अबाउट द
सी आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, एक मिनट, चलो अब देखो यहाँ से, अब वी यूज द येलो कलर, देन इट के वी मिक्स विद द पैरेट ग्रीन कलर, देन एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स बॉटम साइड, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कौन सा कलर यूज किया? रेड कलर। ठीक है, रेड के साथ अब मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब मैं ना आई विल यूज नाउ स्काई ब्लू कलर। ओके, स्काई ब्लू भी यूज करता हूँ इसके साथ मिक्सिंग करने के लिए। देखो अब मैं तीसरा कलर, फोर्थ कलर आई एम टेकिंग इट, और इसको रेड के साथ मैंने मिक्सिंग करनी है। देखो मिक्सिंग करनी है। देखो अब मैं ना जहाँ पर मिक्सिंग कर रहा हूँ ना, बिल्कुल हल्का कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपने डार्क देखा ना, अब यहाँ पर देखो, अब रेड के साथ दोनों को हल्का मिक्स कर, ये देखो यहाँ पर थोड़ी पर्पल भी शेड आएगी। ठीक है, ये देखो बिल्कुल आराम से इसके साथ ओवरलैप करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, आपने जोर नहीं लगाना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। I am trying to speak in English as well as in Hindi also. Actually, sir is knowing that I have a problem with this Hindi Nepali speaking. Here the North India, in India side, the Nepalis, those who are living here, so we have a not good Nepali also. That's why I decided that I should speak in this Hindi and English only. ठीक है ना? हम लोगों का इधर ना, जो हम लोग इधर जितने भी धर्मशाला, इधर देहरादून, हम इधर हिमाचल साइड रहते हैं, तो हमारी इतनी नेपाली आप लोगों की तरह अच्छी नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्पीकिंग। No. तो फिर आप लोग सोचोगे कि सर इज हिमसेल्फ इज अ रवि गुरंग, इज अ नेपाली, बट ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, बिकॉज देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल कीप ऑन लाफिंग। ठीक है, Problem. Okay. अब मैंने देखो यहाँ पर, ये देखो ये कलर आ गई। अब Yes. मैं ले रहा हूँ पिंक कलर। देखो ये देखो पिंक कलर, ये देखो मिक्सिंग, देखो ये देखो, देन आई विल क्लोज दिस वन। ये देखो, देख रहे हो, ये आपने मिक्सिंग यहाँ पर देखना है। जब दो कलर मिक्स हो रहे, तो यहाँ पर ये देखो एक लाइन सा आ रहा है, ये लाइन नजर नहीं आना चाहिए, इसको मिक्स करना प्रॉपर, बिल्कुल स्मूथ हैंड से। ठीक है, गॉट इट। आप देखो इसमें एक चीज और है, वन थिंग मोर ये, आप देखो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये देखो हियर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये देखो यहाँ पर भी स्काई बन रही है, हियर आल्सो वी हैव अ स्काई, हियर आल्सो स्काई, हियर आल्सो स्काई। ये देखो अब सब में बर्ड उड़ रही है। देखो पिंक कलर की स्काई भी कितनी अच्छी लगेगी। ठीक है, रेड कलर की भी इधर, आई विल मेक इट लिटिल बिट डार्क बिकॉज द बैकग्राउंड इज ऑलरेडी रेड। ये देखो, देख रहे हो? ओके, नाउ let us we will start now to next our this pencil shading. Okay, now pencil shading, what the sir has told, Baby Guru sir, and pencil shading and that. Okay, now let's start with the pencil shading now. Actually, today is the first day. I told you in the beginning also. Right now also I am telling you, क्योंकि अभी देखो अगर मैं अभी कुछ टॉपिक को लेके करूं, तो अभी एक्चुअली भी अभी हम लोग पहली बार मिले हैं, तो अब प्लानिंग कुछ नहीं है कि सर क्या सिखाएंगे, कैसा है इनका हाथ क्या। तो नेक्स्ट टाइम चलो, जैसे व्हेन वी विल मेक अ प्लान, सर विल मेक अ प्लान, सर विल लेट मी नो, तो फिर हम लोग क्या है कि आप लोग वो चीज लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, कि तो फिर आप वी विल वर्क, मेरे सामने बैठ के आप लोग बनाओगे, देन वी विल टेक अ पिक्चर ऑफ दैट योर ड्राइंग। ठीक है, कि किसने कितना अच्छा बनाया है। ओके, नाउ कम टू दिस पेंसिल शेडिंग। ओके, नाउ बेटा ये देखो मैं लेता हूँ, आई एम टेकिंग नाउ दिस माई 10B। ओके, मैंने लिया है 10B, द पेंसिल इज 10B। ओके, अगेन आपने क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, आई ऑलवेज कीप माई लिटिल फिंगर, ये जो सबसे जो उंगली है ना, इधर इधर रखता हूँ, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। अगर अगर इवन मैं कलर भी कर रहा हूँ, तो ये देखो ऐसे रखता हूँ, ऐसे करके पेंट ब्रश पकड़ के। ठीक है ना, पेंट ब्रश पकड़ के। ठीक है, आप कुछ भी चीज बना लो, इफ यू मेक, ये देखो। ठीक है, ये देखो पहले आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन, अब देखो इसको हम 2D भी बोल सकते हैं, 2D भी बोल सकते हैं। इसके देखो एक हाइट मिल रही है, यू कैन सी द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द थिंग्स, चौड़ाई भी मिल रही है। अब 3D, जब इसको हम ना 3D में थोड़ी सी इसकी ना शेडिंग शुरू कर देंगे इसमें, ठीक है ना, डेप्थ भी नजर आने लग जाएगी। तो देखो डेप्थ कैसे नजर आएगी, लुक हियर नाउ। ये देखो अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, थोड़ा यहाँ पर मैं थोड़ा, चलो इधर आई विल मेक दिस माउथ ऑफ दिस हियर। ठीक है,
ये बना दिया। आई विल चेंज द कॉन्सेप्ट, इधर ये मैंने कर दिया हियर एंड हियर। ठीक है, अब इसको मैं आई विल चेंज इनटू 3D। ठीक है, इसके नीचे मैं टेबल बना देता हूँ। आई विल मेक अ टेबल। ये देखो, ये टेबल। ठीक है, टेबल का देखो, अगर वुडन टेबल होगा तो आपका ये देखो। ठीक है, अब देखो 3D एंड दिस पेंसिल शेडिंग। ठीक है, पेंसिल शेडिंग का क्या है, इट्स अ वेरी इजी टेक्निक, सारे बच्चे करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, आपके टीचर भी सिखाते होंगे। तो सबका अपना अपना ढंग होता है ना। तो लुक हियर, आपने क्या करना है, जैसे जहां पर हमें डार्क चाहिए होगा तो वहां पर आपने प्रेस करना, अगेन वही कलर टेक्निक सबका वही है, देखो। और जैसे आप इसको लाइट करते जाएंगे, ये देखो, ये देखो, दिस इज द प्रोसेस अगेन। ठीक है, अब देखो मैं इसको 3D में चेंज कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग इनटू 3D। ये देखो, दिस पार्ट आई विल मेक इट डार्क। ये देखो, इसको मैंने प्रेस कर दिया थोड़ा कलर को। ये दिस इज 10B। इसको मैं कहीं पर मुझे लाइट चाहिए होगा तो मैं बिल्कुल हल्के हाथ से चलाऊंगा। देखो, आई एम यूजिंग राइट नाउ, आई एम यूजिंग 10B कलर दिस, एंड दिस इज माइन इज स्टेडलर पेंसिल कलर। ओके, यू विल गेट अप्सरा आल्सो, कैमल आल्सो। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर दिया मैंने, ये देखो शेडिंग this corner part, and now I will start from here also. देखो, I will not use the finger and that for, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको ना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, एंड अब देखो मैं एक तरफ इसको लाइट रख रहा हूँ। यू कैन सी दिस पार्ट इज ऑलरेडी लाइट। अब ये आप सोचोगे कि वाई दिस इज वाइट। देखो, आप लोगों ने देखा, आप भी करते भी होंगे। हो सकता है कि आप लोगों को टीचर हैज बीन, यू हैव बीन टॉट फ्रॉम योर सब्जेक्ट टीचर आल्सो इन डिफरेंट स्कूल्स, है ना। फिर भी जस्ट आई एम रिकॉलिंग दैट थिंग। ठीक है, मैं, दिस इज सनलाइट, सन रेज ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देखो पेंसिल शेडिंग, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग आल्सो वी हैव अ डिफरेंट शेड ऑफ दिस पेंसिल। एक्चुअली आई एम सिटिंग एट द साइड। ओके, मैं साइड में बैठ के बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर हो सकती है। ये देखो, अब मैं इसको डार्क करूंगा, यहाँ पर थोड़ा प्रेस करूंगा। ये देखो, देख रहे हैं आप लोग। और फिर आउटलाइन में, आउटलाइन में ये देखो। ठीक है, इसको हम रेंडरिंग भी बोलते हैं। रेंडरिंग, रेंडरिंग होती है लाइन ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है ना, रेंडरिंग। ठीक है, अगर मैं इसी को देखो, थोड़ा सा मैं इसको देखो क्रॉसिंग में भी कर दूं शेडिंग। ये देखो, क्रॉसिंग में ऐसे करके, अब क्रॉसिंग में आ रही ना, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉस। ठीक है, ये देखो, इस पार्ट को मैं डार्क करता हूँ थोड़ा सा, देख रहे। एंड डाउन पार्ट, क्योंकि देखो व्हेन वी कीप एनीथिंग मेरे हाथ के नीचे, तो ये पार्ट में इसका शेडिंग, इसका शेड आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और ये डार्क हो जाएगी हमेशा, क्योंकि इट्स वेयर द टू ऑब्जेक्ट आर मीटिंग, दैट पार्ट विल बी ऑलवेज डार्क। वो जगह आपको डार्क नजर आएगी। ये देखो, इसकी शैडो भी यहाँ से, इसको ना 3D देखो। अब देखो इसको, अब देखो डेप्थ भी आनी शुरू हो गई, देख रहे हैं आप लोग। अब देखो, इसका मैं हैंडल भी कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर। आई वर्क ऑन दिस हैंडल आल्सो। ठीक है, अगली बार तो सी, टुडे तो जस्ट आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन। अगली बार हम क्या करेंगे, वी विल मेक, आई विल मेक विद द प्लान विद द सर। ऑलरेडी ही इज अ वेरी great person. The moment he has stepped, I think in science center at Kalimpong, उनके आने के बाद तो साइंस सेंटर का इतना वो चेंज हो गया है कि सी ऑल द पीपल यू आर नोइंग। अभी देखो टूरिस्ट जाते हैं वहां पर, नहीं तो क्या था। ठीक है, तो with his greatness and his very, sir is already very active, and sir is also a very artistic mind of person. ठीक है, ये देखो, तो अगली बार क्या है कि हम किसी टॉपिक को लेकर ना हम काम करेंगे। फिर आप लोग देखोगे नहीं, आप लोग भी मेरे साथ ड्राइंग बनाओगे। फिर हम इतनी सारी चीजों को नहीं लेंगे, कोई भी एक चीज लेके ना हम बनाएंगे ड्राइंग। ठीक है ना, तो सर बता देंगे कि हाँ कि व्हाट वी शुड गो विद द मीडियम। ठीक है ना, पेंसिल सबके पास होती है। ठीक है ना, पेंसिल आप नॉर्मल रख लेना, और एक स्केच बुक एक रख लेना, और नथिंग। और ये देखो, ये पार्ट भी मैं डार्क कर रहा हूँ। ये देखो, और बीच बीच में मैंने देखो व्हाइट छोड़ा हुआ है। व्हाइट मैंने बताया, व्हाइट इसलिए छोड़ा है, ये इसको ना, ये सनरेज है, लाइट है, वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी
रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, ठीक है। और ये देखो मैंने कुछ लाइन ऐसे बनाते हैं ना हम लोग स्ट्रीट लाइट में, ये देखो लाइन भी बनाते हैं, ये होती है कि सनलाइट को दिखाती है, इट रिप्रेजेंट द सन रेज रिफ्लेक्टिंग ऑन द थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, ये देखो ठीक है, लाइट आ रही है यहाँ पर, ये देखो आप देख रहे हैं। और सी, आपने हमेशा कोई भी चीज हम बनाते हैं ना, ये देखो पीछे की इसके लेग भी बना लूंगा, आप बोलोगे कि सर ने तो ये पीछे का बनाया नहीं इसका लेग, ये देखो, ये देखो यहाँ पर ये भी जोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। टेबल के ये पीछे ये भी इसका आ गया, इसका लेग भी आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी बना दूं, ठीक है। ये देखो 3D में करने के लिए देखो, इसको कुछ नहीं होता, 3D में मैंने बोला ना उसकी डेप्थ भी नजर आ जाएगी सारा कुछ, ये देखो बस, ये देखो इसको और डार्क कर देता हूँ, ये देखो नाउ आई विल यूज आई विल यूज नाउ 12B, ठीक है। मैं 12B ले रहा हूँ, 12B आई एम टेकिंग ए 12B पेंसिल फॉर शेडिंग। अब देखो थोड़ा सा और डार्क करूँ, अब देखो आपको मैं बता रहा था ना ज्योमेट्री, ये देखो इसमें देखो आपकी ना पहले शुरू तो ज्योमेट्री में ना आपकी बड़ी परफेक्शन होनी चाहिए। और से अब मैं इवन आई एम टेलिंग यू ऑल द पीपल, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ जितने स्कूल के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आई डोंट वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। मैंने बोला हियर द मैटर इज नॉट ऑफ आर्टिस्ट, ये द थिंग्स इज, वो बोलता है कि सर बिकॉज मोस्टली यू नो हियर इन आवर स्कूल वी हैव अ एनआरआई स्टूडेंट एंड फ्रॉम पंजाब, दिल्ली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बोलते कि सर आई वांट टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। मैंने बोला इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर यू हैव टू समटाइम यू हैव टू मेक अ डायग्राम आल्सो। और अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर डॉक्टर आपको आगे चल के +2 कहीं कॉलेज में तो करनी पड़ेगी ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट विल इंप्रूव योर लाइन। आई एम नॉट टेलिंग यू कि यू हैव टू बिकम एन डॉक्टर और कि इसको करके आर्टिस्ट बनो आप लोग, ठीक है ना। आप जो भी बन जाओ, लेकिन आपको क्या है एटलीस्ट आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इट इज एन सर्कल, एक ध्यान से देखो। और हमेशा ना कभी किसी को ड्रा करते हैं तो देखो हमें पेज को हमेशा, ये देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, ये देखो सर्कल है, ये सेंटर वर्टिकल लाइन है, यहाँ से मैंने देखो हॉरिजेंटल लाइन, ये देखो मैं आगे से आपको अगर व्हेन वी मेक, तो आई विल डिवाइड अवर पेज एंड आई विल टीच यू इन दिस वे, ठीक है ना। देखो 4 पार्ट में डिवाइड होगी, तो देखो यू कैन सी हियर इन अ वेरी इजी वे। ये देखो इसको हम और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्योंकि देखो सी आई हैव नॉट कॉल्ड माय स्टूडेंट्स, अगर मैं भी अपनी लिंक अपने स्टूडेंट को शेयर करता तो अभी बड़ी हल्ला होना था। वो तो दे आर लॉट ऑफ, हम वी हैव 1400 स्टूडेंट्स, तो मतलब आप लगा लो यू कि वो दे आर ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग कि सर व्हेन विल बी द पीरियड, व्हेन विल बी द पीरियड, ओके। तो वो तो पूछते रहते हैं कि पीरियड कब होगा, कि आप कब सिखाओगे हमें सर। तो हल्ला हो जाएगा तो फिर तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। देख रहे हो आप कुछ भी नहीं है बेटा इसमें ना, देखो ये जो ड्राइंग है ना ये ज्योमेट्रिकल है। हम देखो अब आई विल छोटा सा आपको मैं बिफोर वी विल या वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन अराउंड 3:30। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, आई रियली आई अप्रिशिएट वी हैव अ स्मॉल किड्स आल्सो। देखो बच्चे, ये देखो, देखो अब आप देखो स्कूल में आप बनाते हैं सर्कल, ठीक है। स्मॉल क्लास में एलकेजी यूकेजी में टीचर क्या बोलते हैं कि आपको मेक अ सर्कल, देन मेक अ स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यू नो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, इट्स हैविंग ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। फिर बोलते हैं कभी मैडम बोलते हैं कि मेक अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, देन ट्रायंगल, ओके, देन दिस, जैसे आप बनाते हैं ना चांद मून हैव सेमी सर्कल, ये देख रहे हैं। अब देखो इसको देखो, आपने कुछ नहीं करना है, देखो अब इसको देखो, मैं अगर इसमें देखो एक एक इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, ये देखो ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल बन ऐड कर दिया ना मैंने, देखो ट्रायंगल ऐड करते ही क्या हो गया, हार्ट का शेप ले लिया इसने, देखो चेंज इनटू हार्ट, ये देखो हार्ट। और मैं यहाँ पर डोर एक आई यूज रेक्टेंगल ऐसे करके सेंटर लेके, ये देखो इसका डोर बन गया,
डोर बन गया ना बेटे, ये देखो डोर बन गया, ऑल द ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है ना। अब मैं इस लाइन को थोड़ा आगे ऐसे करता हूँ और आई मेक सम, ये देखो एक ऐसे करके एक मैंने यहाँ पर हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर भी ये देखो, और यहाँ पर एक ट्रायंगल साइड में ऐसे करके ट्रायंगल ऐसे करके, और इसके बीच में दो लाइन, पैरेलल लाइन, ये देखो ट्री का शेप बन गया, ट्री का शेप बन रहा ना। Here I'm, because I know, because this is our, actually I'm thinking here the mostly the kids and students are here, तो मैं आपके लेवल का ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ज्यादा टिपिकल अभी नहीं बता रहा हूँ। तो here देखो ट्री को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, देखो ये देखो सर्कल और एक दो लाइन लगा दी ट्री, ये देखो। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक तरफ लाइन ऐसे जा रही है, देखो रोड बन गया आपका, रोड बन गया ना यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पर ऊपर ये देखो चिमनी भी बना सकते हैं ऐसे करके, ये देखो चिमनी, ये हट के ऊपर, और यहाँ से धुआं निकलता हुआ, द स्मोक, ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हैं। सी, art is nothing, art is based on geometrical things, okay। now I'll अब मैं इसी को देखो, ये देखो, ये अब सर बोल रहे थे जस्ट लुक हियर वी टेक अ सर, ओके सर नेम ओनली। अब हमारे वी हैव अवर सर इज बीबी गुरुंग सर हियर, सी आई विल राइट अ बी, ओके चलो हम बी लिख लेते हैं, ये देख रहे हैं, बी फॉर बैट, बी फॉर बम्बई लिखते ना हम लोग, ठीक है। ये देखो इसको बोलते हैं 2D। अभी देखो अगर मैं इसको 3D में चेंज करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर से, ये देखो, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया, ये देखो, अब ये देखो बी बन गई आपके सामने, ठीक है। अब इसको मैं 3D में देखो, यहाँ पर ऊपर ले लिया इसका, ये देखो ऊपर से ले लिया, ये यहाँ से आ रही है ये, और यहाँ से इसको ऐसे, और ये, ठीक है, और इसको मैं ऐसे, ये ऐसे। अब मुझे अंदर वाली पार्ट को मैं डार्क कर देता हूँ, देखा, मेक इट डार्क। थोड़ा सा पेंसिल को दबाना है बेटा इस समय ना आपने, अगर आप स्केच कलर से कर रहे हैं तो इसको डार्क कर लें, ठीक है। ये पार्ट डार्क आ गई, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा लाइट करूंगा हल्का सा, ये देखो शेडिंग। 3D में ये होती कि देखो, देख रहे हैं आप लोग, एक्चुअली मैं साइड में हूं तो मुझे थोड़ा सा ना लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, थोड़ी सी हल्की सी ना मुझे, तो मैं आइडिया से कर रहा हूँ। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन भी देखो नीचे, रिफ्लेक्शन भी इसका इसका नीचे ला सकता हूँ ऐसे करके, बी का उल्टा ऐसे करके हल्का सा, ये देखो हल्का सा इसको सेट कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। सी टुडे मे बी यू विल नॉट एंजॉय, आपको मजा भी नहीं आएगा कि सर तो बनाए जा रहे हैं, क्या बनाए जा रहे हैं, आपको सारे दिमाग से निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन आगे से जब हम आप बनाओगे तो, है ना, मेरे साथ मिलके बनाएंगे तो यू विल एंजॉय, ठीक है। अगर एक बार जैसे एक बार आप शुरू करोगे तो बनाना, फिर डेफिनेटली, हाँ, आपका क्या होगा कि आपका दिल करेगा कि नहीं हमने तो पीरियड लगाना है फिर, है ना। तो मैं आज आपको सिर्फ आई एम टेलिंग अबाउट द 3D 2D, देख रहे हो ना आप, लग रही है ना चीजें वैसी, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पर देखो टेक्निक बड़ी चलती है, फिर टेक्निक्स को इल्यूजन क्रिएट करने के लिए इसको काट दूं, इसको किसी बेस पे रख लूं, ठीक है, तो आपको 3D इफेक्ट आ जाएगी वो ना, जैसे लगेगा रियल वो चीज पड़ी हुई है, वो होती रियल नहीं है, उसको इफेक्ट वो इल्यूजन वैसे नजर आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। एंड सी नाउ आफ्टर दिस अगेन आफ्टर इट नाउ आई विल स्टार्ट, और मैं आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ द थिंग्स विच यू रिक्वायर्ड, आप लोगों को जो चीज, देखो आप लोगों को स्कूल में आपको टीचर ने बताया है कि नहीं बताया, आई डोंट नो द टीचर हैज टॉट यू इन द स्कूल और नॉट, ठीक है। अब हमें तो बताना पड़ता है इधर, नहीं तो द स्टूडेंट कीप ऑन आस्किंग कि सर कौन सा पेंसिल कलर चाहिए, कौन सा लें, क्या लें। तो आपको पता होगा इधर पंजाब वाले तो हमें तंग करते हैं स्टूडेंट ना, वो तो फिर मतलब, या तो सी आप लोगों को कुछ नहीं लेने की जरूरत है। आप लोगों को एक तो आप लोगों को स्केच बुक चाहिए, उसका जो पेज होगा ना A3 रखो आप लोग, ठीक है ना, A3 या तो छोटी भी A3, इट्स नॉट कॉस्टली, 200-250 रुपये में आ जाती है, ठीक है ना, नील, हाँ
वो रख लो, Sir, एक I स्केच बुक रख लो, use और A4. कुछ A4, that's great. It's good. That also good, beta. Good, good, good. Okay. And see, और आप लोगों ने क्या करना है, पेंसिल रख लेना। पेंसिल आपको देखो, आपने फोर्स नहीं करना किसी ने, nobody will going to force on their parents कि I need this thing sir has told me in that workshop। तो आप लोगों ने फोर्स नहीं करना है, आपने मेरी चीजों को नहीं देखना। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्केच कलर ले लेना है, 12 शेड वाले हैं, 24 भी मिल जाते हैं। तो यू गो फॉर दैट, इट्स 30 रुपीज हार्डली। ठीक है, खर्चा भी नहीं करना ज्यादा, ठीक है ना। अभी आप यू आर लर्नर, तो लर्नर में क्या होता है कि हम हर चीज ना छोटी चीजों से शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल, इरेजर, और अगेन टाइम, बिकॉज इट्स गोइंग वेरी क्लोज नाउ। आप लोगों को फिर मैं बताना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू अगेन, ये सी, आप लोगों ने पहली बात तो ना अपने कोई भी पेंसिल को दबाना नहीं है। गुड 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 गुड। या आई कैन सी योर, या सी, देखो पेंसिल को आपने ना कभी भी जोर से दबाना नहीं है, ठीक है। ऐसे जोर लगा के नहीं करना है। डोंट प्रेस द पेंसिल विद द फोर्स, ऐसे जोर लगा के नहीं करना है। दबा के चलाते हैं कोई ना, जोर लगा के पेंसिल को ऐसे नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्का हाथ है। ये देखो लाइट चलनी चाहिए ऐसे, ये देखो ऐसे करके, जोर नहीं लगाना है, ठीक है ना। जैसे आप टॉफी, कोई अच्छी टॉफी होती है उसको चूस चूस के करते हैं, खाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल, है ना। कोई तो गुस्से में चबा देता है ना टॉफी को, वैसे नहीं चबाना, बिल्कुल हल्के हाथ से पेंसिल को ऐसे हमेशा। चाहे वो आप लोग साइंस की डायग्राम बनाओ, चाहे आप सोशल स्टडी में आप मैप बना रहे हो, वर्ल्ड मैप बना रहे हो, इंडिया मैप बना रहे हो, चाहे आप अपने सिक्किम का मैप बना रहे हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल का मैप बना रहे हो, तो बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे, ये देखो हल्के हाथ से ऐसे करके, ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। इसमें और आपसे क्या होगा, इससे तो आपको अगर कहीं गलती हो जाती तो आप इजीली यू कैन इरेज द थिंग्स, ठीक है, पहली बात। सेकंड थिंग, आपके पास वो आ गया, ऑयल पेस्टल कलर ले सकते हैं। ऑयल पेस्टल कलर देखो आप, डोम्स, डोम्स का बड़ा अच्छा आ रहा है कलर, है ना। बिफोर आई क्लोज दिस, नाउ वी हैव 8 मिनट, तो आपने डोम्स का कलर ले लेना है, ठीक है बेटे। डोम्स कलर बड़े सस्ते हैं और अच्छा है। ऑयल पेस्टल रख लो, आप स्कूल में भी, आप घर में भी कर सकते हैं, अगर टीचर को भी, इफ यू आर इन द स्कूल, यू हैव अ ड्राइंग टीचर, आर्ट टीचर, आप उनको भी पूछो, आप कुछ भी आप अपने तरफ से बनाओ, ठीक है। सिंपली यू कैन स्टार्ट विद योर ज्योमेट्रिकल, मेक अ ज्योमेट्रिकल शेप्स पहले, है ना। आप ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाओ, और हमेशा कोशिश ये रखना है कि वट एवर यू मेक, आपने पेज का सेंटर लेना है बेटा। पेज का हमेशा सेंटर लो, डिवाइड करो पेज में, ठीक है ना, आराम से बनाना है। अब देखो, अगर मैं देखो, अब देखो पेंसिल से मैं आई मेक अ माउंटेन, ये देखो, ये देखो माउंटेन ऊपर नीचे होती है ना, ये देखो, ये बना दी एक माउंटेन, ठीक है। अगर इसी में, अगर इसी को मैं ज्योमेट्रिकल शेप में, ये देखो ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल में भी माउंटेन, ये देखो स्नो ऑन द माउंटेन, ये देख रहे हो स्नो। और यहाँ पर भी देखो, ये देखो स्नो, देख रहे हो, ये देखो ज्योमेट्रिकल। अब मैं यहाँ पर देखो शेडिंग कर रहा हूँ, ये मैं आपको मैं बता दूंगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आई टीच यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पक्का आई टीच यू हाउ टू मेक दिस थिंग्स एंड वी, और हम कोशिश करेंगे कि एक ड्राइंग पक्का बनाए, ठीक है। एक ड्राइंग हम एक सारे मिलके बनाए, एंड आई सी द आउटपुट, कितने अच्छा बनाया आप लोगों ने, किस बच्चे ने अच्छा बनाया। और आई विल टेल यू वन थिंग, और इन चीजों में ना हमें उम्र का नहीं होता। आप ये मत सोचना कि मैं उससे छोटा हूँ या मैं छोटी हूँ, वो तो मुझसे बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा है, वो तो अच्छा बनाएगा, ऐसे नहीं होता है। देखो आपने, यू हैव से टुडे सैटरडे संडे आप देख रहे हो, एंड सोनी टीवी में, उसमें देखो बच्चे गाना गाते हैं, डांस करते हैं, देखो किस लेवल पे जा रहे हैं छोटे बच्चे भी, ठीक है ना। तो मेन आर्ट में कोई वो नहीं होती है। इवन आई एम लर्निंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑल्सो। कभी कोई बच्चे अच्छे भी बनाते हैं, उनका भी देखता हूँ क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। और हम लोग जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं, दिस इज ह्यूमन दैट नेचर, होल लाइफ वी कीप ऑन लर्निंग, वी कीप ऑन लर्निंग, कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो कीप ऑन लर्निंग, ठीक है ना। तो आई एम ऑल्सो स्टिल आई एम लर्निंग। नाउ सी लुक हियर, ये देखो शेडिंग मैंने यहाँ पर डार्क कर दी, ये देखो, ये देखो ये रियलिस्टिक में आ रही है, देखो यहाँ पर डार्क आ रही है, ये देखो इसके साथ मैं, ये देखो माउंटेन, पहाड़ पे, ये देखो, ठीक है, ये मैंने कर दी। और यहाँ पर देखो, अब ये अगर आप छोटे बच्चे बना रहे हो तो देखो,
कोई छोटे बच्चे बना रहे हो तो ये देखो, ये देखो आप इसको देखो ट्रायंगल शेप में, और ये देखो ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नजर आ रही ना, डब्ल्यू भी नजर आ रही होगी आपको, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये देखो, ये देखो एक लाइन इधर से, और ये देखो सिंपल, ये देखो कुछ भी नहीं, आपकी माउंटेन भी बन जाएगी। छोटे बच्चे जो बना रहे होंगे एलकेजी यूकेजी और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, अगर कुछ बच्चे अगर दे कैन मेक दिस, दे कैन गो फॉर टफ आल्सो। अगर आपको लगता है कि मैं तो टफ बना लूंगी, ठीक है ना, ये देखो। और हमारे साथ क्या होता है ना, देखो हम बोलते हैं कि जब हम कभी खाने की बारी आती है तो हम लोग ये नहीं बोलते कि मैं नहीं खा सकता, मैं तो बड़ा छोटा हूँ। देखो अगर मैं अभी, देखो आप नेपाली, तो मैं अगर मैं मीट खा रहा हूँ तो मेरा बेटा बड़ा बोलेगा कि मैं तो 6 साल का, मैं तो मीट नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता हूँ मटन। खाएगा पक्का, और दबा के खाएगा, ठीक है ना, जोर लगा के खाएगा। तो मतलब ये चीजें हैं कि हम लोग उसमें, देखो आपने अपने अपने को हमेशा, देखो आपने ये सोचना है कि और फ्री टाइम में आप लोग देखो यूट्यूब में देखते रहो, देखो रोनाल्डो का देखो, माइक टायसन का देखो, व्हाट ही वाज, क्या किया बचपन में, देखो कितने गरीब थे, कितने देखो उन्होंने अपने उसको छोटे बचपन से ही दे हैव डन लॉट ऑफ एफर्ट, दैट्स व्हाई दे हैव नाउ नेम एंड फेम, ठीक है ना, ठीक है। ये देखो विद पेंसिल, सिंपल कुछ भी नहीं है। और जब आपने देखो, आप अगर स्कूल में होंगे तो आपने देखो इसमें बॉर्डर लाइन भी छोड़ना है अपने, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन होता है मार्जिन लाइन, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं, देखो आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट, ये देखो थंब है मेरी, इसके बाद ये फिंगर है, तो इसके बराबर आपने लगभग इतना एक निशान यहाँ पर लगा लिया, ठीक है, एक मैंने सेंटर में लगा लिया ऐसे रख के, हॉरिजेंटल वे में रखना है, एक यहाँ पर लगा लिया। अब मैं स्केल लूंगा और इन तीनों पॉइंट को ऐसे मिला लूंगा, आई विल जॉइन दिस 3 पॉइंट, ये देखो एक लाइन ऐसे बन गई। अगेन आई एम टेकिंग दिस फिंगर हियर, एक लाइन इधर लगा लो, क्योंकि अगर आपके पास बड़े स्केल है, इफ यू हैव अ बिग स्केल, देन यू कैन मेक जस्ट यू पुट हियर 1 पॉइंट, 1 हियर एंड जॉइन इट। इफ यू डोंट हैव अ बिग स्केल, 1 फीट स्केल, और दूसरी होती है छोटी वाली, ठीक है। तो अगर आपके पास छोटी वाली है तो आपको फिर पहले यहाँ से लाइन यहाँ पर लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ पर। तो ये देखो आई एम टेकिंग ऑन द सेंटर आल्सो एंड एट द बॉटम आल्सो। अब इन तीनों लाइन को मैं इन तीनों पॉइंट को मिलाता हूँ, ये देखो, ये देखो बॉर्डर लाइन इधर भी बन गई, ठीक है। नाउ अगेन दिस 1 फिंगर, देखो आप अपने फिंगर का लेना है अपने नाप, ठीक है ना। आप 2 फिंगर भी रख सकते हैं, ठीक है, एंड 1 फिंगर भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 फिंगर यू टेक, नॉट बट अगर जितना मार्जिन लाइन ज्यादा छोड़ोगे तो आपको यू विल गेट अ लेस लेस स्पेस, आपको कम जगह मिलेगी आपको ड्राइंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि 1 फिंगर कर लो, 1 फिंगर एट द बॉटम आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो आई जॉइन दिस लाइन, ये दिस, और हियर भी देखो, ये हियर 1 फिंगर सेंटर में, ये सेंटर में, और इन तीनों पॉइंट को मैं ऐसे मिला लूंगा स्किल से, ठीक है ना, स्किल से ऐसे करके, ये देखो Yes, sir. मार्जिन Yes, लाइन, sir. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, बेबी सर, Yes, sir. It is nice, sir. Nice, sir. हाँ सर, what shall we do now? Shall we close our workshop or it should be continue, sir? What do you think, sir? Just take at least 10 to 15 minutes or more, sir. Okay, sir. Because students हाँ, are enjoying your session, sir. yeah, sir. Okay, sir. And see, listen to me. All we are lucky here. Sir, If we are meeting due to sir. हाँ देखो, अगर आज हम लोग सारे मिल, आप मुझे देख पा रहे, मेरा वर्क देख पा रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे, दिस इज ड्यू टू हिज एफर्ट, आवर बीबी सर एफर्ट, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू, ओके, नाउ लुक हियर बेटा, okay, look here now. After for this, I'll see, sir. Yeah, I sorry, I forgot to show you the brushes also. देखो बेटा,
आप लोगों ने ब्रशेस भी लेने, देखो मेरे पास ये देखो, ये ब्रशेस इसको बोलते हैं हम फैन ब्रश, FAN फैन, होते हैं ना हवा देने के लिए, होते हैं ना, आपने देखा हमारे तो देखो कालिम्पोंग उधर मिल जाता है, आपने चाइनीज आइटम देखा ना, फैन देखा है, उसकी तरह होती है देखो, ठीक है, ठीक है, फॉर मिक्सिंग। ये देखो, अगर आपने देखो, अगर आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू विद द ऑयल कलर आल्सो, इससे कैसी कलर होती है ट्री की, देखो अगर मैं ऐसे ऐसे रखूंगा ना फटाफट, ट्री की ना जितनी भी छोटे छोटे लीफ आपने सीनरी में देखा होगा मार्केट में बिकती है ऐसे करके, इजिली यू कैन पुट दैट लीफ, छोटे छोटे, ठीक है ना। दिस इज फैन, दिस इज फिल्बर्ट, ये देखो फर्क है इनमें, दोनों में फर्क है। फिल्बर्ट, हाँ, इजीली देखो, आपको अगर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो फ्रॉम द अमेजन ऑल्सो, बड़ी सस्ते हैं कलर, इवन मैंने देखो अमेजन से मंगाया हुआ है ये वाला, ये वाला, दिस इज फ्रॉम माई चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ से लिया है, तो दिस अमेजन से मिल जाती है, सारे सामान अवेलेबल हैं, वेरी मीन लो प्राइस, ओके। देन अगर आप लोग देखो, आप लोगों को मैं बता दूंगा चीजें, एंड दिस इज देखो राउंड, दिस इज माय अमेजन फ्रॉम अमेजन, ओके। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई एम कीप ऑन यूजिंग दिस ब्रशेस, ये देखो पॉइंटेड है, ये देख रहे हैं आप, ये देखो पॉइंटेड, हाँ। अब आप लोगों को देखो कौन सी चीजें जरूरत पड़ेगी, आई विल टेल यू, ब्रशेस आल्सो आई राइट हियर द थिंग्स, देखो पेंसिल, ओके, पेंसिल ऑलरेडी यू नो, लाइक HB, okay, then you can take 2B, 4B, 6B and 8B and 10B also and 12 also we have, ठीक है। इतना अगर आप स्कूल लेवल पे हैं तो आप थोड़े से रख लो, आप ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है, इट इज नॉट कॉस्टली, ठीक है। ड्राइंग कॉपी स्केच बुक तो आप ऑलरेडी यू हैव, ठीक है। देन ब्रशेस, अब नाउ कम टू द ब्रशेस, ब्रशेस आपको जरूरत पड़ती है, देखो आपको एक ना आपने रखना है 0 नंबर का, 0, ये 0 नंबर आपको पड़ती है, जैसे आप यू आर मेकिंग आईज, आंखें बना रहे हो, ठीक है, अगर कहीं पर आपने छोटी छोटी बारीक काम करना है, 0, उसके बाद उससे और बारीक होती है 00, और फिर 000 भी होती है, 000, ये जो ट्रिपल ब्रश के ऊपर नंबर लिखा होता है, देखो आई विल शो यू, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, अब एक्चुअली डार्क हो रही होगी, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इधर 1 नंबर लिखा होता है, जितना ये 000 ना सबसे बारीक होता है, इट्स वेरी थिन, ये आपको ना जैसे आईब्रोज बनाने के लिए, अगर आप इफ यू आर यूजिंग, यू आर मेकिंग अ पोर्ट्रेट विद द पोस्टर कलर, या आप बर्ड बना रहे हो, छोटे छोटे आपको, आपके ना बर्ड के आपने उसके आप पंख बनाने, हल्के 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 से ना चीजें, तो फॉर वेरी थिन वर्क 000, फिर 00, फिर 0, एक तो ये ब्रशेज हो गई, एक एक रख सकते हैं आप, ठीक है। दीज आर द राउंड, ये राउंड की बात कर रहा हूँ, राउंड ब्रशेस, राउंड, ठीक है। अब तो हमारे पास से ऑल दिस ब्रशेज आर नाइलन, क्योंकि अब बैंड लग चुका है इंडिया में, पहले हमारे पास जो होती थी वो गिलहरी की होती थी, ठीक है। आई हैव दोस ब्रशेज आल्सो, अब हमें सिंथेटिक मिलती हैं जो मार्केट में, क्योंकि बैंड हो चुकी हैं, तो वो सिर्फ किसी किसी दुकान पे छुपा के रखते हैं, तो जो प्रोफेशनल है उन्हीं को देते हैं वो, ठीक है ना। एंड देन इट कम्स, आप रख रहे हैं, आपको वाटर पे कलर भी करना है, दूसरी वो भी करना है, यू टेक 4 नंबर, ठीक है, फिर 6 नंबर रख लो, और एक 8, एंड एक एक नंबर छोड़ देना है आपने, देन 10 नंबर, ठीक है। राउंड, राउंड ब्रश, ओके। अब आप ये देखो, ये यू विल गेट फ्रॉम अमेजन ऑल्सो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर कालिम्पोंग में नहीं मिल रहा है, आई नो कालिम्पोंग में इतनी अच्छी मार्केट नहीं है, आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे बैठे आ जाएगा सामान आपका, ठीक है। और उसके बाद आप यू टेक फ्लैट, या फ्लैट, ओके, फ्लैट, ये आप लोगों ने, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऑनलाइन, है ना, आप इसको, आपको याद हो जाएगा कि सर ने क्या क्या सामान लिखा हुआ है। राउंड ब्रशेज हो गई, पेंसिल का नंबर है, ठीक है, अमेजन से मिल जाता है इजीली, और सस्ते रेट में मिल रहा है, ठीक है ना। फ्लैट ब्रशेज हो गए, आप रख लो 2 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर रख लो, और एक 8 और एक 12 नंबर रख लो, बस ये काफी है, इट्स इनफ, क्योंकि ये 12 नंबर इसलिए लिखा कि जैसे आप कहीं पर बेस बैकग्राउंड में कलर करना है, इजीली आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गई आपको ब्रशेज, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ब्रशेज, एंड नाउ यू नीड अ पोस्टर कलर रख लो, एक पोस्टर कलर, पोस्टर कलर्स, ये कैमल के मिल जाएंगे, कैमल कंपनी, ठीक है ना। आप जैसे अमेजन में डालोगे पोस्टर कलर्स,
है ना। कैमल तो आपको आ जाएंगे उसमें, उसमें आपको ना इसमें आ जाएंगे आपको। मेरे पास जो है ये तो मैंने मार्केट से लिया है, इट इज नियर अबाउट 300 रुपीज। देखो मेरे बॉटल, ये देखो, देख रहे हैं कलर, पोस्टर कलर, ये देखो Sir, इसमें I कितने use शेड है। fabric paint. हाँ फैब्रिक, या आई विल टेल यू नाउ, या गुड, दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट योर स्पीकिंग विद मी, इवन आई रिक्वेस्ट अदर आल्सो, और द अदर पार्टिसिपेंट आल्सो, लाइक हु इज सिटिंग विद मी, या ठीक है, इज वेरी स्वीट girl is sitting in front of us and she is asking me Sir, question, this is Vaishnavi good. Khetri. हाँ, गुड गुड। हाँ तो देखो, नाउ आई विल टेल यू। अब इसमें क्या होता है ना, एक्रेलिक, यू टोल्ड मी एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक कलर में क्या होता है कि इट्स गेट्स ड्राई वेरी फास्ट, सूखती बड़ी जल्दी है, ठीक है ना। उसको कलर करना बड़ा थोड़ा ना तेज करना पड़ता है। फैब्रिक कलर एक्चुअली जब नाम ही देखो, इफ यू स्पीक, यू टोल्ड मी नाउ, यू स्पोक अ वर्ड फैब्रिक, यू राइट नाउ यू स्पोक अ वर्ड फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब ये असल में ये होता है कि कपड़ा, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कपड़ा, फैब्रिक, कौन आपकी फैब्रिक बड़ी अच्छी है ना। बोलते हैं ना, मम्मी को बोलते हैं, मम्मी जी आपने बड़ी अच्छी कपड़े वाली कौन सी फैब्रिक है ना, हम फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक होता है कपड़े के ऊपर एक्चुअली चलता ही है ना। और एक्रेलिक होती है एक दूसरी, एक्रेलिक, ठीक है, एक्रेलिक। तो आपकी ना देखो ये दोनों चीज ना बड़ी जल्दी सूखती है कलर, ठीक है ना। इसको रंग कलर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें। तो हमें अभी आपने क्या लेना है, आप कोशिश ये करो कि आप ट्राई, ये भी मैं एक्रेलिक भी बताऊंगा आपको, एक्रेलिक बताऊंगा। इससे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कंपटीशन में जाते हैं ना, कंपटीशन में क्या होता है कि अगर जब आपका हाथ बैठ जाए तो तब आपके पास, इफ यू हैव अ 1 hour और द जजेस हैव, द ऑर्गेनाइजर हैज डिसाइडेड दैट इट, द कंपटीशन इज ऑफ 1.5 hour, तो 1.5 घंटे में आपको ड्राइंग भी करनी, कलर भी करनी है, और कलर को सूखना भी चाहिए। तो एक्रेलिक कलर हम वहां पर यूज करते हैं, ठीक है ना, उस जगह में। कि नहीं तो आपको फूक मारते रहना पड़ेगा, दूसरे पेज से आपको ऐसे ऐसे सुखाना पड़ेगा कि आप कलेक्ट भी करना है कि दूसरे पेज के साथ इट शुड नॉट गेट स्टिक विद अदर दैट द पार्टिसिपेंट ड्राइंग। तो उस इसमें हम एक्रेलिक भी यूज करते हैं। तो अब देखो, अब इसके बाद आपने देखो पोस्टर कलर ले लेना है, एक आती है वाटर कलर, वाटर कलर, ठीक है, वाटर ले लो आप, वाटर कलर, ठीक है ना, वाटर कलर रख लेना, ये भी बड़ी अच्छी है, मीडियम। तो अब देखो आजकल तो यूट्यूब में बड़े टेक्निक आ रहे हैं, वो टेक्निक है, लेकिन हमने टेक्निक को फॉलो नहीं करना। पहले पहले आपने अपने ना नेचुरल उसको करना है, ठीक है। कभी क्या होता है ना, अब हम देखते हैं सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए। अब देखो आप अगर रोनाल्डो को, कभी फुटबॉल का, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फुटबॉल का, अगर उसका गेम देखेंगे तो हम उसकी जैसे अगर खेलने लग जाएंगे तो हम नहीं सीख खेल पाएंगे। वो आपका अपना टेक्निक होना पड़ेगा, आपका अपना गेम होता है, ठीक है। शाहरुख खान अगर टीवी में है, सलमान खान अपने उसके अपने डायलॉग्स हैं, शाहरुख खान के अपने वो हैं, ठीक है ना। आप सबने अपना अपना नाम रखा हुआ है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। हम इंस्पायर हो सकते हैं दूसरे लोगों को देख के, उनके काम को देख के, लेकिन आपने अपना नेचुरल जो होगा ना, नेचुरल पहले क्या होगा, हाथ चलाना पड़ेगा। अब टीवी में और यूट्यूब में तो टेक्निक बताते हैं कि कलर को आप फिंगर में लगा लो, ठीक है, फिंगर में लगा लो, और रेड कलर को लगा लिया, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा लो तो ट्री बन जाती है। आई विल शो यू, दैट इज टेक्निक। उसमें आप आर्ट नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ, दैट इज योर टेक्निक्स, यू आर अप्लाइंग द टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक फॉर द थिंग्स। बट हियर आपको तो सबसे पहले तो देखो, हम बोलते हैं कि टूल्स, टूल होते हैं आर्ट के टूल्स। जैसे आप गाड़ी की दुकान में जाते हो, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप टूल निकालते हैं, मैकेनिक टूल निकालते हैं, तो आपके टूल ये हैं, फिंगर, जो 10 फिंगर है ना, ये है टूल, टूल, TOOLS, टूल्स। टूल्स इज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी बोलते हैं, ये है इक्विपमेंट आपके। जब तक अगर आपके, आपने तो, इवन मैं देखता हूँ हमारे स्कूल में, व्हेन आई वाज हियर लास्ट 10 year बैक, वन चाइल्ड वाज हियर, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। या गुड गर्ल, या गुड लिटिल गर्ल, गुड गर्ल। हमारे स्कूल में ना एक बच्चा था, उसके ना दोनों हाथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इट ही हैज लॉस्ट हिज हैंड। तो उसने ना इस जगह में, इस जगह में रबड़ बैंड बांध के ना मुंह से चलाता था ऐसे करके। एंड या इवन ही इज राइट, वेरी गुड, ही यूज्ड टू मेक वेरी गुड ड्राइंग। तो ऐसी नहीं होती है, देखो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने हमें इतना अच्छा हाथ दिया है, तो गॉड हैज गिफ्टेड अस वेरी गुड फिंगर। इसी हाथ से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी हाथ से आप देखो फूल भी लगाते हो बाहर, ठीक है, और इसी हाथ से कपड़े भी धोते हैं मम्मी, इसी हाथ से खाना भी बनाते हैं, इसी हाथ से मम्मी मोमो भी बनाते हैं ना, मोमो भी बनाते हैं, पिज्जा भी बनाते हैं। तो दिस इज, तो हमें अच्छी चीजों के लिए यूज करना है। इसी हाथ से हम देखो दूसरे को नमस्ते भी करते हैं, वी प्रे टू गॉड ऑल्सो, ठीक है। तो इस, हमें इस हाथ को, भगवान ने इतना अच्छा हाथ दिया तो हमने इस हाथ को यूज करना है, ठीक है, अपने हमेशा ये और अच्छी चीजों के लिए यूज करना है, ठीक है। आपके पास देखो, आई टोल्ड यू दिस थिंग्स,
तो हम नेक्स्ट टाइम मैंने बोला ना सर कैसे बताएंगे, वी विल फॉलो द दैट व्हाट बीबी सर विल टेल अस द नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उस चीज को लेके हम ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, ड्राइंग बनाएंगे। हाँ, अगर इवन आई विल शेयर माई, हाँ मेरी ना जो मेरी क्लासेस चलेंगी, अभी तो वी हैव अ हॉलीडे, तो आप लोगों को मैं अपने क्लास में बुलाऊंगा। ठीक है, मेरी जो स्कूल की क्लास चलती है मेरी, उसमें तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना? हाँ, आई हैव अ मेन सेक्शन वाइज हमारी, तो मैं आप लोगों को जूम में मैं अपना लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने देख आप भी अटेंड करना, नो बडी विल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? मेरे जब बच्चे आएंगे, अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, तो हमारे 16 के बाद, 16 अगस्त के बाद हमारा क्लासेस चल पड़ेगा अगेन ऑनलाइन। तो जैसे अब आई हैव अ पीरियड विद 6 7, उसमें कंबाइन आएंगे 6 ABCD, 7 ABCD, सारे बच्चे इकट्ठे इकट्ठे होंगे। तो वैसे फिर नेक्स्ट पीरियड होगा मेरा, जैसे 8th एंड 9th वैसे क्लास वाले आएंगे। ठीक है, देयर आई एम टीचिंग, तो हमारे बिल्कुल टेक्निक से, क्योंकि आज देखो पहला दिन था, तो दिस इज द मेन, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर बीबी सर, ड्यू टू हिम ओनली I am here. I am teaching you something. I am telling you something. It's our, we are very lucky. मैं तो बोलता हूँ, देखो कालिम्पोंग में कुछ some people only very mean they are mean I can say they are very great. एक तो हमारे बीबी सर हो गए, ठीक है, और मेरे तो ठीक है, एक है मेरे अपने महादेव भाई, है ना, और हमारे मेरे दाजू हैं उधर ही, है ना, बीके शर्मा जी, एंड सम ऑफ दे आर ऑलवेज हेल्पिंग मी। ठीक है, और मैंने 2 3 4 बार एग्जीबिशन भी लगाया ड्यू टू देम ओनली। और ऐसे लोगों के होने से ही देखो आज साइंस सेंटर में एनीबडी, दोज पीपल हु स्टेप इन दैट सेंटर, और दिल खुश हो जाता है कि वाकई में कुछ चीज है देखने का। ठीक है, देखो पार्क इतना अच्छा बना दिया है, डायनासोर्स, इतने सारे चीजें, आप लोग जाते हैं, है ना? तो ये चीजें होती है। तो आप लोग देखो, दिस इज ड्यू टू नॉट वन पर्सन ओनली, है ना? और आप लोगों को कोशिश ये करना कि आपने अपने क्लासमेट को भी बोलना है, जैसे नॉट इन ड्राइंग ओनली, जब भी ऐसे सर रखते हैं तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ट्राई टू पार्टिसिपेट। सर देखो कितनी अच्छी वो करवा रहे हैं, आई एम इन टच विद सर, है ना, मैं सर के साथ टच में हूँ, तो देखो कितनी अच्छी अच्छी कंपटीशन कभी कुछ वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक दैट कि मीन यू ट्राई टू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, फ्रेंड क्लासमेट आल्सो, एवरी हियर। इसमें क्या होता है देखो, अब ये तो टीम वर्क होती है, इट्स अ टीम वर्क। एक पर्सन से अगर सर हम बोले कि बीबी गुरुंग सर एंड हिज टीम ओनली विल वर्क, नो, ठीक है, तो हमें तो सब मिलके साथ चलना पड़ेगा ना, जैसे ठीक है ना, जैसे मोदी जी बोलते हैं, ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना? अगर सारी अगर सारी बोलते रहेंगे कि मैं ये ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, द पार्टिसिपेंट आल्सो अदर, सी आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माय स्टूडेंट हियर राइट नाउ, ठीक है, मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं एक्चुअली स्पेशली दिस इज फॉर माय दैट दैट साइड ओनली, कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग साइड ओनली, नॉट टू दिस साइड। तो इसलिए देखो आप लोगों ने ये चीज रख लेना, तो अगली बार आप लोगों को मैं इतना अच्छा ड्राइंग सिखाऊंगा, और ऑनलाइन बनाएंगे, और आप लोग देखोगे कि आप लोग जो चीज मैंने बनाई है आप भी बना लोगे, टफ से टफ। और मैं आपको इतने इजी वे में बताऊंगा, ये देखो जितने फिंगर है ना, इसी से अभी देखो कि कितना आपने लेना है, और फिंगर के हेल्प से आई विल टीच यू ड्राइंग, आपको कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। और आप लोग एक बार ड्राइंग पीरियड अटेंड कर लोगे ना, देन आप फिर बोलोगे अगेन एंड अगेन दैट आई वांट डेली दैट पीरियड। ओके, आज तो जस्ट आई गिवन एन इंट्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी सर, बीबी सर। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, Ravi sir. थैंक यू सर, थैंक यू। So nice presentation, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. On behalf Thank of you. Kalimpoong, Yes, sir. thank you. Thank you, you Thank too, you so sir. much. And sir, it is due to Thank sir. you. Yeah. Yes, Now sir. request participant to ask any question if you have. नानीहरुको वर्षका केही क्वेशनहरु छ भने नानीहरुले सरलाई सोध्न सक्छ। Sir, what So, about WordPress art? See, actually, you are in touch with the sir directly, because so you can discuss with sir
then let sir will tell me कि sir कि बच्चे किस उसमें करना चाहते हैं और see I don't have a problem if you want कि sir you teach me you take a class of clay modeling also कि आप portrait बना के दिखाएं clay में so that also because I am a sculptor basically my degree is in sculpture only as sir told you in the beginning in 2000 I passed out from Government College of Fine Arts from Chandigarh then after that I joined a private institute in itself in Himachal as a drawing teacher and artist from last 21 year I am working in a one school only तो अब सर जैसे बताएंगे कि अगर बच्चे if you are telling कि मुझे हमें सर acrylic color से कुछ scenery बनाना है कुछ करना है तो I will teach you that I will take that one medium only that time ठीक है एक चीज को लेके हम Yes, sir. तो उस दिन क्या होगा Hmm. the time will not go waste हामी नानीहरूको इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राख्दै विशेष रवि सरलाई हामीसँग जोड्ने निम्ति एटलिस्ट महिनामा 2 पल्ट जस्तो हाम्रा नानीहरूलाई यो फाइन आर्टमाथि बताइदिनु भने तपाईँको ध्यान एकदमै कृतज्ञ रहन सक्छ सर और right now I was telling sir कि I will send you that my Zoom that which I take for my school where I am working for my classes I will give them also that the Zoom ID and the link they can then I will tell when it will going to start and mostly it is in the evening time like 4 to my period is of 40 minutes daily it's a regular period Monday to Friday Saturday sorry तो Sunday we have off तो उसमें क्या है कि आप लोग मतलब शाम को रोज जोड़ सकते हैं 2 पीरियड हैं मेरे तो उसमें कंबाइन क्लास आती है 6 7 8 9 तो सर आई विल सेंड यू दैट लिंक आल्सो तो अगर टाइम नहीं मिला तो अगर जैसे दिस इज सर इज पुटिंग ऑल द एफर्ट सर जैसे बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे तो थ्याङ्क यू रविज्यू हामी तपाईँले दिनुभएको जुन चाहिँ लिङ्क छ हाम्रो साइन्स सेन्टरको जुन चाहिँ सोसियल साइट छ त्यहाँनिर हामी सेयर गरिदिन्छौँ जो इन्ट्रेस्टेड छ दे विल जोइन इन द्याट लिङ्क त्यसमा नानीहरू जोइन गरेर त्यो प्रोग्राममा दे क्यान पार्टिसिपेट इन द्याट भर्चुअल प्रोग्राम एन्ड डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटेड सो लाग्छ सायद कसैको पनि अब क्वेसन छ जस्तो लागेन कसैले पनि सोध्नु भयो कसैको केही छ क्वेसनहरू सरलाई सोध्नु Purnima Sharma, you are very, very active and interested from beginning. हाँ sir. Any question? Sir. हाँ. Mata sir, I am always looking at her picture also profile. महादेव भाईले हमेशा आलू बस्नु हुन्छ उसमा Facebook मा भी. She is very interested in drawing also. अच्छा sir, she is a daughter of Madhav sir. Yes sir. You are right sir. Nice sir. I think then we have to conclude today's program, sir. Yes sir. Thank you sir. Okay, thank you so much, Ravi sir, for your beautiful presentation. We have thanks to you, sir. Lot of thanks to you. Good afternoon, sir. I'm the daughter of Mahadev Chetri. Very much. Thank you. In your lecture, we got the opportunity to understand what is art, pencil drawing, use of different medium like sketch, colors, pencil colors, etc. Not only this, everyone present in this program has benefited a lot. Viewers watching this online program may also have benefited a lot. On behalf of all the participants, I'd like to thank you very much once again. So we look forward to hearing from you in the future too. We'll always be grateful for your invaluable time and knowledge. Thank you, Ravi sir, once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Me too, sir.